I think my voice is clear to you all. So before starting the part, let me tell you one thing that I have covered in this video. All the questions like recently asked questions of me previous years, like 10 to 15 years. Okay, and I'll be explaining each and every question in detail. कि किसमें क्या concept use हुआ है, what are the formulas. Okay, सो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. बट डू नॉट स्किप द वीडियो लाइक आधे में छोड़ मत देना या स्टार्टिंग का थोड़ा करके, क्योंकि जब पूरा वीडियो करोगे देन ओनली विल बी थोरो विद द होल चैप्टर. दैट इज माय गारंटी. ठीक है, आधे में करोगे तो क्या होगा, आधा पता चलेगा, आधा कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, क्या पता ये सब उसी से क्वेश्चन आ जाए. सो whenever we are doing any chapter we have to give our 100% clear. सो रिसेंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख सकते हो, दैट इज फ्रॉम नीट 2021. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एंड ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर के ऊपर क्वेश्चन है. सो देन लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, from the following pairs of ions, which one is not an isoelectronic pair? Not an isoelectronic pair. Isoelectronic. Iso word का मतलब क्या है? जैसे isobar, isotherm, isotope, isotone, है ना? So isomers, isotonic. तो ये iso means same. Okay. Isoelectronic pair, that means any chemical species, whether it is atom, molecule or ion, if it contains same number of electrons. Okay. So what we can write here? So we can write here isoelectronic pair means same number of electrons. Clear? Same number of electrons. So from the following pairs of ions, which one is not isoelectronic pair? तो बताओ same number of electrons कहाँ नहीं है? Not an isoelectronic pair. So you have to check the option where the pairs have different number of electrons. See here, O2 minus means oxygen has 8 electron, atomic number is 8, 8 plus 2, that is 10. Fluorine has 9, 9 plus 1, 10. So it is isoelectronic. We have to take not an isoelectronic. Fe2 plus Mn2 plus. तो देख के पता चल रहा है चार्ज सेम है 2 plus 2 plus. But iron and manganese different atom है ना? So of course the option will be A. बाकी सारे करने की जरूरत थी नहीं, but फिर भी बता देती हूँ. Manganese atomic number is 25 and iron atomic number is 26. Okay? So Fe का जो atomic number है वो 26 है और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है 25 है. सो दोनों से 2 plus माने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो हाउ कैन इट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेटियम 71 नीचे लिखा हुआ है, इनकी एटॉमिक नंबर है, और 175 जो लिखा हुआ है दैट इज योर मास नंबर. ल्यूटेटियम एक्चुअली आता कहाँ है? So if you see lutetium, you will see this lutetium in the F. Okay, F block. जैसे S block, P block, D block, F block. F block में जो दो सीरीज है, एक तो 4F सीरीज है which is known as lanthanide series and 5F सीरीज है ना? 4F है और 5F है. So 4F जो है that starts from 58 atomic number यानी कि सीरियम, और टोटल 14 एलिमेंट्स होगा और खत्म कहाँ होगा जाके lutetium में, that is 71. Okay. So lutetium is the last element of your 4F series. Okay, जिसको हम क्या कहते हैं? Lanthanides. क्या कहते हैं? Lanthanides. And 4F के बाद 5F, that is your actinides. Okay, so now lutetium atomic number 71 and atomic number. Okay, Z से हम denote करते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है 71 atomic number, and atomic number gives us number of electrons, which is again equal to number of proton because electrically neutral होता है हमारा atom. Okay, अगर वो cation anion form में नहीं है तो that's why 71 होगा proton and electron, and बीच में neutron पूछा है respectively, तो serial order ध्यान देना कैसे लिख रहे हो. neutrons, so number of neutrons कैसे निकालेंगे? so number of neutrons equals to, you can write P plus N minus P. अब ध्यान देना, what is P plus N? न्यूक्लियन है ना. P plus N क्या है? न्यूक्लियन माने न्यूक्लियस में क्या है. सो न्यूक्लियन P plus N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, माइनस प्रोटॉन करोगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा. अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियन माने एटॉमिक नंबर और मास नंबर. मास नंबर ए से मैं क्या डिनोट कर रही हूँ? मास नंबर. एंड जेड से क्या डिनोट कर रही हूँ? एटॉमिक नंबर. So mass number minus atomic number, that is 175 minus 71, that is your
104 एंड दैट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि बीच में 104 होना चाहिए, आगे पीछे 71 अगेन द ऑप्शन इज वन ए, अगेन द ऑप्शन इज वन। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ये नीट 2021 एंड 2020 में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन। सो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एक काम करते हैं, मैंने जहां पर भी कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, सेम टाइप के क्वेश्चन 3-4 बार yearly पूछा है, तो उसको मैंने एक दो बीच में हटा दिया है, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम टारगेटिंग कि कुछ नया सीखो, ठीक है। 100 क्वेश्चन सेम करना एंड 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, फर्क पड़ता है उसी में, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑलरेडी दो आई हैव डन वन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम 2021, ये फिर से करा रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा उसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मुझे लगता है करा देना चाहिए। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में यहाँ कौन सा होगा पूछा गया है, ये 2000 में आस्क्ड क्वेश्चन है। सो 2021 में भी 20 में भी बहुत बार रिपीट हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो यहाँ पे CO कार्बन की एटॉमिक नंबर हो गया पहला ऑप्शन। अगर देखोगे तो कार्बन की एटॉमिक नंबर हो गई, इसमें आ जाएगा 6 एंड ऑक्सीजन 8। 6 से कितना हुआ 14। कार्बन नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो ऑक्सीजन हो जाएगी, है ना। सो ये भी 14। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस को नाइट्रोजन सोच लो, वो भी 14। C2 का मतलब 6 6 12, 2 आ गया, ये भी 14। सो ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। All other options also you can check, like CO minus that will be your 15, CN that will be your 13, then nitrogen oxygen ये हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन 7 8 ये हो जाएगा 15, C2 minus ये हो जाएगा 13. So all of them are not equal. ऐसा similarly CD भी check कर सकते हो, option will be A. Next question. So the next question. A particular station of All India Radio, New Delhi. Okay, so here we will focus All India Radio, New Delhi. That means it will be releasing radio waves, and radio wave is a type of electromagnetic radiation. Okay, so you have to find out wavelength, ना? And broadcast on क्या लिखा हुआ है, particular station of All India Radio, New Delhi broadcast on a frequency. Frequency is given. Okay. सो यहाँ मैंने डॉट दे दिया है, बट इट इज 1368। हाँ, ये डॉट जो है प्रिंटिंग में ऐसे ही डॉट जैसा दिखा था, पर एक्चुअली ये डॉट होगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, ये डॉट नहीं है। 1368 किलो हर्ट्ज पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, 1368 किलो हर्ट्ज। ओके, now let's solve the question. Frequency is given, wavelength you have to calculate. Always remember, कोई भी electromagnetic radiation, चाहे रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, एक्स-रेज हो, visible light, whatever it is, it propagates in the speed of light. Okay, इसीलिए दिया हुआ भी है given c for speed of light, that is 3 into 10^8 meter per second. So the formula will be c equals to nu lambda, है ना, from atomic structure, very small formula, that is c equals to nu lambda, and you have to calculate lambda. So for lambda you will write c by nu. So what is c? 3 into 10 to the power 8 meter per second. एंड न्यू क्या है, 1368 किलो का मतलब 10 to the power 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज कैन बी रिटन एज सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज माने 1/2 और सेकंड इनवर्स, because hertz for frequency, right? So we can write 10^8 divided by 10^3 becomes 10 to the power 5. 3 into 10 to the power 5 divided by 1368, that finally gives you 219.9 something something, यानी कि 219.29 something something. So यानी कि राउंड फिगर करके 219.3 मीटर आ जाएगा, ठीक। So 219.3 meter, that is option B. That is a very recent question asked in NEET 2021. Okay. Next, the value of Planck's constant. Planck's constant denoted by H, given by Max Planck, right? So Planck's constant is given. Speed of light, ये NEET 2013 का question है. Speed of light is given, that is 3 into 10^17 Newton meter second inverse. Okay, speed of light is given. Next, 3 into 10^17 नैनोमीटर, ध्यान देना,
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द वैल्यूज, ओके, कन्वर्शन वैल्यूज। जैसे कि हमें मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये थोड़ा सा जो है वो छोटे से हम लोग एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्केल्स हमें यहाँ पे चाहिए होती है बिकॉज वी आर डीलिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी आर डीलिंग विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वी आर डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, obviously we will be needing some microscopic scale, and because of that I am writing some of the values which will be very helpful by for the conversion of the questions, like nanometer का मतलब क्या है, नैनो 10 to the power minus 9 मीटर लिख सकते हैं। 1 एंगस्ट्रम अगर दिया हुआ है तो उसको अगर मीटर लेके जाना है ऐसा यूनिट तो 10 माइनस 10, ठीक है। देन लिख देते हैं 1 पिकोमीटर, that is 10 to the power minus 12, 1 fermimeter 10 to the power minus 15, और माइक्रोमीटर, माइक्रो माने 10 to the power minus 6, मिली तो पता ही है 10 to the power minus 3, ठीक है। और आगे पीछे कर सकते हैं but that is not required, it is enough, okay, for this chapter's question। चलो, दिया हुआ है h, then speed of light दिया हुआ है in nanometer, so you can understand 10 to the power 17 नैनोमीटर मतलब मीटर में कितना होगा, है ना। so मीटर में कितना होगा -9 हम कर देंगे यहाँ से। एंड देन नेक्स्ट हो गया which value is closest to the wavelength, क्लोजेस्ट इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ना अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, इसीलिए लिखा क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ इन व्हाट, नैनोमीटर, of a quantum of light with frequency this much. So frequency is given, speed of light is given, okay, so you have to find the closest value of what, wavelength, you have to find closest value of what, wavelength। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, okay, now एनर्जी जो होती है दैट इज hc by lambda फॉर एनी क्वांटम ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, यहाँ पे वही फॉर्मूला सेम करेंगे हम, जैसे एनर्जी इक्वल्स टू हम लिखते हैं h न्यू hc by lambda, एक्चुअली न्यू इज व्हाट, c by lambda। सो पहला क्वेश्चन जैसे किए थे ऐसे ही कर लो, न्यू इक्वल्स टू c by lambda। सो इफ वी पुट न्यू इक्वल्स टू c by lambda, हमें निकालना है lambda। सो C दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर, ध्यान देना 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स, तो मीटर में लेके जाने की जरूरत एक्चुअली है नहीं क्योंकि तुम्हारा जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में ही पूछा गया है। एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स कैंसल, 17 15 माने 10 टू दी पावर 2 एंड 3 6 यानी कि ये हाफ हो गया, हाफ का मतलब 0.5 है ना, और 0.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना आया 2, यानी कि आंसर कितना आया 50। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 50, ओके। जस्ट यही करना है, mu equals to c by lambda, which formula we are following here, we are following here mu equals to c by lambda, okay। So what do you understand by quantum of light? These are the packets or bundle of energy, है ना। किसने बोला था, मैक्स प्लैंक ने, कौन से थियरी में, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ओके, प्लैंक्स क्वांटम थियरी में उन्होंने कहा था, उसमें एक फोटोन, क्वांटम ऑफ लाइट का दूसरा नाम है फोटोन, एंड एक फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्या है, E equals to h nu which is equals to hc by lambda, ठीक है। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड, बट दिस विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो वो ऐसे ही एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर question। Next here we according to law of photochemical equivalence, energy absorbed in arcs per mole, ध्यान देना arcs में निकालना है। अब एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स we can see like joule can be used, calorie can be used, watt hour, then हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो हो गया ये आर्क्स, ये सारे एनर्जी यूनिट है, बट डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको।
is given as h दिया हुआ है in arcs, ओके, c दिया हुआ है। हमेशा ध्यान देना आर्क्स के लिए जब निकालेंगे तो मास जो है, ठीक है, वो ग्राम में होती है एंड स्पीड ऑफ लाइट सेंटीमीटर, ठीक है, आर्क्स के लिए। एंड आर्क्स एंड जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, उसका मैं जो भी रिलेशंस है वो नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ, यहाँ मुझे पेज नहीं दिख रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एनर्जी एब्जॉर्ब इज गिवन एज। सो एनर्जी निकालना है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला है AC/λ, तो कर लो। H का वैल्यू दिया हुआ है, क्या करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻27 हो गया H। देन C, तो मुझे एक काम करनी पड़ेगी, हाँ इसको मिटाना पड़ेगा, ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो ना ये वाला पोर्शन, तो मैं मिटा देती हूँ, अदरवाइज देयर इज नो मोर स्पेस टू राइट द नेक्स्ट सॉल्यूशन। सो इसीलिए चलो आ जाता है, ये हो गया तुम्हारा C दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ध्यान देना अगर मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता तो ये 8 होता। एंड क्या दिया हुआ है AC/λ, है ना, सो लैम्डा, लेकिन लैम्डा फॉर्मूला पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ही, देखो दैट मींस लैम्डा इज नॉट गिवन एंड वी डोंट हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, जैसे है ऐसे ही फॉर्मूला रख देते हैं। पर अगर ये करोगे ना एक फोटॉन्स का, ठीक है, एक का एनर्जी निकलेगा हमें, लेकिन ये एक के लिए नहीं चाहिए, 1 मोल सैंपल के लिए चाहिए। क्या चाहिए, 1 मोल सैंपल के लिए चाहिए। एंड वी नो दैट 1 मोल सैंपल में पार्टिकल्स कितना रहता है 6 पॉइंट, ये दिया हुआ है एवोगैड्रो कांस्टेंट। 1 mole sample contain how many particles, that is Avogadro constant Na, Avogadro constant Na, okay, and that value 6.022. Here we have to just take approximate value 6.02 into 10⁻23 mole inverse, और वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पे न्यूमरेटर में इंटू करोगे नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। 1 मोल सैंपल के लिए तुम्हें चाहिए, ध्यान देना इन आर्क्स पर मोल लिखा हुआ है। सो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। तो फाइनली ये 10 टू दी पावर, ध्यान देना इसमें 10 टू दी पावर -27, 10 टू दी पावर 23 कितना हुआ 27 23, दैट विल बी, ये निगेटिव है ना, -4 और यहाँ पे कितना है +10, यानी कि कितना हुआ -4 +10 +6, तो पावर कितना हुआ +6, ठीक है। बाकी बचा हुआ लिख लेते हैं 6.62, ये वाला 6.62, फिर ये 3 है, ये फिर 6.022 3, देन अगेन 6.022 और पावर कितना आ रहा है 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 फिर 6 है फिर 3 है, 6 स्टार्ट 6 3 है, तो यानी कि ये लगभग 100 के आसपास आ जाएगा, यानी कि और 2 पावर बढ़ने के चांस है, 10 टू द पावर 8 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एक बार हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन। 6.62 समझ आ रहा है ना, 6.62 6.022 एंड 3 अगर इंटू करेंगे लगभग मैंने जैसे बोला 100 के पास आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही हूँ, तुम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो अभी इसी दौरान जब वीडियो देख रहे हो, ओके। दैट 100 से थोड़ा ज़्यादा 119.55 आ रहा है 10 टू द पावर 6। यहाँ पे 1.196 एक ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर मैं 2 पॉइंट आगे ले आऊँ 1.1955 को 6 लिख सकते हैं, तो 10 टू द पावर 6 में 2 पावर बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 2 पावर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है क्योंकि 119 को मैंने 1.19 लिखा। इज इट क्लियर? सो ये भी मुझे ए ही मिला, आज तो इस पेपर में ए ही मिल रहा है कंटिन्यूअसली ना, सो ये ए होगा, क्लियर, वेरी सिंपल। आर्क्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो चलो थोड़ा सा ना यूनिट ऑफ एनर्जी जो 3-4 है ना उसका कन्वर्शन वगैरह वो हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। सो आई होप यहाँ तक तुम लोग का सारा चीजें जो है ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मुझे थोड़ा जगह मिल गई, तो ऑब्वियसली जगह मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली यूज करूँगी, और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एनर्जी यूनिट्स के लिए, ठीक है। जो इस चैप्टर में यूज होगा मैं वही बता रही हूँ। सो एनर्जी यूनिट्स, तो एनर्जी यूनिट्स में अगर हम देखें
पहली बात तो ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है एंड 1 वोल्ट हो गया उसकी पोटेंशियल। यानी कि एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला है Q into V। दैट मींस इफ वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q on a metallic plate where electricity is provided, means electric plate having voltage V, okay, potential V, then charge into potential, that is Q into V, gives you the energy. If the charge is placed at rest, then it will be potential energy. If charge is accelerated by charge Q with potential V, then it will be kinetic energy. But ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है, इतना जान लो। वहीं से QV से आया ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होगा। ये कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय 5 वोल्ट, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। वी आर फाइंडिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या वैल्यू है। सो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, है ना। सो कूलम into 1 वोल्ट। सो इसको अगर सॉल्व कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1, है ना, सेम ही रहेगा, कूलम into वॉट, जूल्स। सो यू कैन सी हियर, तुम्हें ये आंसर जो है जूल में ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्लियर। So 1 electron volt is how much, 1.6 10 to the power minus 19 joules। चलो आगे बढ़ते हैं। और so ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें जूल एंड आर्क्स का, ओके, देन 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क्स। ओके, सो जूल एंड आर्क्स का अगर तुम्हें देखना है रिलेशन, यू कैन राइट 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 17 आर्क्स। सो मुझे ये बताओ, कैलोरी एंड जूल, कैलोरी एंड जूल का क्या होगा, कैलोरी एंड जूल का क्या होगा, कैलोरी एंड जूल का क्या रिलेशन होगा। व्हाट डू यू थिंक द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल। So that will be 1 calorie, okay, equals to 4.1840 joules। So ये चीजें याद रखना, कैलोरी, जूल्स, आर्क्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स, these are some of the very minute things but which are very very helpful। क्योंकि मान लो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एंड यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज आंसर तुमने जूल में निकाले, तो क्या करोगे। yes, so these are very minute things but these minute things really matter for a particular multiple choice question। so चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। For given energy E equals to 3.03 into 10 power minus 19 joule, corresponding wavelength is, okay, lambda is being asked in this question, energy is given, okay, so energy अगर दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला होता है AC by lambda। यहाँ से तुम्हें lambda निकालना है, so you can write AC by E। so HC given, okay, और एनर्जी जूल्स में है इसलिए मैं जूल्स के हिसाब से कर रही हूँ, अदरवाइज शॉर्टकट एक है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से कर सकते हो, बट आई एम डूइंग हियर इन टर्म्स ऑफ जूल ओनली, ठीक है, क्योंकि जूल में आंसर दिया हुआ है ना। एनर्जी नीचे लिखेंगे 3.03 10 to the power minus 19 जूल, एच वैल्यू लिखेंगे 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड into 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इस सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मीटर रह जाएगा, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हुआ, जूल जूल कैंसिल हुआ, आंसर मीटर में आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे 3.03 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है, मैं ना काट देती हूँ इसको, ठीक है, 3.03 एंड 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो अप्रॉक्स, ओके, एंड लेकिन ध्यान देना 3 डिवाइडेड बाय 3.03 विल लिटिल बिट लेस देन 1, माने 0.9 समथिंग टाइप होगा, एंड पावर्स में देख लो -19 गोज अप, 10 टू पावर -34 है, यहाँ 10 टू पावर +8 है, 34, यहाँ 19 को ऊपर ले जाओ तो 19 + 8 27 होगी, एंड 27 में और 7 पास करते तब जाके 34 होता, इसका मतलब है -7, कितना आया 10 टू दी पावर -7, और ये आंसर 6.6 के जगह अप्रॉक्स में कर रही हूँ, है ना, सो 6.5 समथिंग आएगा, ठीक है।
और ये 10⁻⁻7 मीटर को मुझे नैनोमीटर में आंसर देना है। देखो सारे नैनोमीटर में है, ठीक है, all the options are in nanometer, so obviously I have to convert this meter into nanometer in my question. So ये 10⁻⁻7 को -9 करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा पहले मैंने सिखाया था, और ये 10⁻⁻9 करोगी, 2 पावर तुमने घटा दिया तो 650 के आसपास हो जाएगा। अब मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ किया नहीं था, इसलिए मैं 650 लिख रही हूँ, बट आंसर उस हिसाब से चेक करो कौन सा है। 10⁻⁻9 मीटर का मतलब है नैनोमीटर, ठीक है, बट 650 इज नॉट आंसर, 650 आसपास वाला आंसर होगा, यानी कि ये बी तो नहीं होगा, 65 पॉइंट नहीं होगा, नहीं होगा, यही होगा। क्लियर? तो मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, इसमें देख सकते हो 6.626 इंटू ये 3 एंड 3 नहीं है, 3/3.03 था, लेकिन मैंने उसको कैंसिल किया, इट इज नॉट एक्जैक्टली 1, इट इज 0 पॉइंट समथिंग, इसीलिए ये 6.5 समथिंग समथिंग होगा, ठीक है, तो ये मान लो, तो फिर हम उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मा सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखो इस क्वेश्चन में जाने से पहले इसी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा सा तुम लोग को और बता देती हूँ फ्रॉम द थ्योरी पार्ट क्या है। देखो वी ऑल नो दैट हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी फॉर एनी फोटोन दैट इज द क्वांटम ऑफ लाइट ac/λ. So if energy is to be calculated in joule or electron volt, better first of all solve it in terms of electron volt if the wavelength is given in nanometer. How to do that? The short trick is it energy 1240 इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाय जो भी लैम्डा वैल्यू दिया हुआ होगा, बट वो नैनोमीटर में होना चाहिए। ऊपर में भी यूनिट नैनोमीटर के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई होके आता है, तभी नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल होके फाइनली तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाता है। समझ आ रहा है? जैसे मैंने बोला लैम्डा 400, तो तुमने क्या किया, 1240/400, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। लेकिन वही चीज जूल में जब हम करने जाते हैं ना, हमें एच का वैल्यू पुट करना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू फिर सी इंटू करना पड़ता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो चीजें जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है। सो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में ये शॉर्ट फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट निकाल लेना, और बाद में बोले कि नहीं नहीं मुझे तो जूल में ऑप्शन दिख रहा है, तो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि ये जो भी करने के बाद इलेक्ट्रॉन वॉल्ट को जूल से रिप्लेस कर देना। हाउ टू रिप्लेस इट, यू ऑलरेडी नो that 1 electron volt equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 क्लियर? तो इतना आसान है ना, तो कोई कैलकुलेशन इतना लेंथी होगा ही नहीं, वेरी सिंपल, एक दो लाइन में निकल ही जाएगा। व्हाट विल बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। अब व्हाट इज बाल्मर सीरीज? सो बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग के सिलेबस का पार्ट है। अब ये बाल्मर सीरीज क्या है, सी हियर, from any higher orbit if any transition is happening to n equals to 1. So n equals to 1 is the lowest orbit है ना, इसके बाद तो न्यूक्लियस है एटम का। So n equals to 1 के ऊपर तो 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक इंफिनिटी। कोई भी ऑर्बिट से अगर 1 में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं लाइनर सीरीज। क्या कहते हैं, दैट सीरीज माने दीज आर सम लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम। कोई भी एटम जो होता है, चाहे हाइड्रोजन या कोई भी एटम के लिए जब हम देखते हैं, दे गिव अस लाइन स्पेक्ट्रम व्हिच इज अ टाइप ऑफ डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम कैन बी कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। जैसे हम लोग का बिग जियोर है, विजिबल लाइट का जो 7 कलर्स बिग जियोर, दैट इज योर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, वेदर बट इसमें होगा हमारा डिस्क्रीट और डिसकंटीन्यूअस, और उसका एग्जांपल हो गया एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, देयर लाइट स्पेक्ट्रम ना। बाल्मर सीरीज हो गया सेकंड वाला, यानी कि कोई भी हायर ऑर्बिट से, कोई भी जैसे कि थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवन ऑर्बिट, इंफिनिटी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे बाल्मर सीरीज। क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज। क्लियर? लाइमैन बाल्मर, अगर n इक्वल्स टू 3 में आएगा तो लाइमैन बाल्मर पार्सन, लाइमैन बाल्मर पार्सन, देन आएगा ब्रैकेट, देन आएगा पी1, ठीक है। सो लाइमैन बाल्मर पार्सन ब्रैकेट पी1 एंड देन हम वहां तक देख सकते हो। n इक्वल्स टू 1 में आए तो लाइमैन, 2 में आए तो बाल्मर, 3 में आए तो पार्सन। 3 में कहां से आ सकता है, 4, 5, 6, 7 ऐसे आ सकता है। 3 में 2 या 1 से नहीं आ सकता, डी एक्साइटेशन ट्रांजिशन नहीं होगा। 1 में 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से अप टू इंफिनिटी,
ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में फोकस करते हैं। चलो सीरीज तो हमने देख लिया। सो आवर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द बाल्मर सीरीज 2। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है and we know wavelength and frequency inversely proportional। जिसका longest wavelength होगा उसका frequency जो है minimum होगा। फिर से बता रही हूँ, longest wavelength माने frequency minimum। क्या है? frequency minimum। okay, frequency minimum। So longest wavelength means frequency minimum and frequency minimum means energy minimum। energy minimum उस हिसाब से हम लोग को निकालना है। सो एनर्जी मिनिमम कब होगा? बाल्मर में आता है 2 में ना, सो 3 से आ सकता था, 4 से, 5 से, कहीं से भी, इंफिनिटी से भी। जितना ये इंफिनिटी से या हायर ऑर्बिट से आएगा, एनर्जी गैप विल बी हायर। हमें एनर्जी गैप मिनिमम चाहिए, यानी कि सबसे करीब वाला जो है वो हम लेंगे, यानी कि 3 से 2 आने वाला। कहाँ? 3 से 2 आने वाला। सो n1 n2 तुम्हें मिल गया। सो हियर n1, ठीक है, 2 ले लेंगे, n2 3 ले लेंगे। अब बोलोगे मैम n1 n2 इनिशियल फाइनल नहीं है क्या? तब तो आपको 3 लेना चाहिए n1 और n2 में 2 लेना चाहिए। पर एक्चुअली देखो क्वेश्चन पूछा है वेवलेंथ एंड वेवलेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। इफ यू टेक n1 to be the 3 and n2 to be like 2, then negative आएगी। Always remember whenever you take n1 n2, चाहे एक्साइटेशन हो और डी एक्साइटेशन, टेक द लोअर वैल्यू, न्यूमेरिकली लोअर वैल्यू, छोटा वैल्यू एज n1। ठीक है, so that you get a wavelength positive because wavelength is a kind of distance ना, crest to crest or trough to trough distance is known as wavelength and wavelength can never be negative because distance can never be negative। okay, so ये कर लो, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना। अब बाल्मर सीरीज 3 से 2 आएगा। हमेशा क्या लेना? एनर्जी मिनिमम बोलने से सबसे पास वाला ट्रांजिशन लिखना, एनर्जी मैक्सिमम इंफिनिटी वाला ट्रांजिशन लिखना, सबसे दूर से। अब चलो आ जाते हैं, वेवलेंथ पूछा है, उस हिसाब से वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला तुम लोग का था 1 by lambda equals to Rydberg constant z square, okay, 1 by n1 square minus n2 square। हो गया। सो 1 by lambda, लेकिन तुम्हें lambda निकालना है। क्या निकालना है? lambda निकालना है। इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करोगे you will get the answer here। so Rydberg constant 1.096 into 10 to the power 7, इसको हम पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो फिर ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा करना पड़ेगा। इसमें हम लोग ले लेंगे जेड का वैल्यू, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। सो बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग का टॉपिक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है बुक में, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन में। तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ तो जगह मुझे दिख नहीं रही है। राइट साइड ही कर लेते हैं। ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताया है, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू सेव योर टाइम इन कैलकुलेशन, इसको भूलना नहीं। ठीक है, तो जब भी मैं मिटा रही हूँ ये हो रहा है, तो 1-2 सेकंड जो तुम लोग को लगता है फास्ट कर देना चाहिए, तो 10 सेकंड फास्ट करने का यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वो कर लेना। बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, यू कैन नॉट वेस्ट इवन 1 सेकंड ऑफ टाइम, है ना। 17 जुलाई को एग्जाम भी है, सो इसीलिए, क्योंकि मुझे तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा, रब करो, इधर लिखो उधर लिखो, तो उस टाइम में तुम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हो अगर मेरा ये स्लो लगे तो। इससे फास्ट मैं नहीं जा रही हूँ बिकॉज अदरवाइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट be able to catch the things। okay, तो इसीलिए मैं जितना हो सके स्लोली पढ़ा रही हूँ। यू हैव द ऑप्शन टू फास्ट फॉरवर्ड। सो उसमें प्लेबैक जो उसमें प्ले का जो होता है नॉर्मल स्पीड, हायर स्पीड, तो हायर स्पीड में करके देख लेना, जिसको थोड़ा स्लो लगे कि मैम रब कर रही है, इरेजर से इधर लिख रही है, उधर कुछ एक्सप्लेन कर रही है जो मुझे पता है, तो यू कैन स्किप इट, है ना। लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी क्वेश्चन जो कि कहीं आउट ऑफ ये है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। चलो, इसमें ये फॉर्मूला से हम जाएंगे इधर 1 by lambda, लेकिन ध्यान देना हमें lambda निकालना है। ओके, 1 by lambda, ये जो Rydberg कांस्टेंट है, यू कैन राइट दिस टू बी 1.09, ऐसे भी लिख सकते हो, या पूरा वैल्यू 109677 एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर हम निकालने के लिए ये लिख रहे हैं, अगर मीटर के लिए होगा तो और ये आ जाएगा। तो इसके बाद 1 बाय, क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन 2 and 3, है ना, पहले 2 लिखना है मैंने बोला था, ताकि वेवलेंथ पॉजिटिव आए। डन।
सो 1 बाई लेमडा में ये सॉल्व कर लेना है 109677 1 बाई 4 माइनस 1 बाई, ओके। सो पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर, यहाँ लेमडा कर लेना, यू विल गेट आंसर 656 nanometer. So your answer will be this one, 656 nanometer, 656 nanometer. Okay, so this is your R is your Rydberg constant. Okay, अब बोलोगे मैम R का वैल्यू क्या है, Rydberg constant यहाँ पे जो लिखा है that is 1.0967 into 10 to the power 7 मीटर inverse. लेकिन अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 तक भी लिख सकते हो। ओके, 10 to the power 5 सेंटीमीटर इनवर्स 109677, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो याद रखना द सीरीज, सबसे छोटा वाला सबसे नीचे वाला दैट इज लाइमन सीरीज, देन बाल्मा, पाक्सन, ब्रैकेट, पीकन एंड हम्फ्रे। प्रैक्टिकली हम्फ्रे तो दिखेगा नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा जाके, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि एनर्जी लेवल जो होती है सबसे फर्स्ट एंड सेकंड की हायर होती है, सेकंड एंड थर्ड में गैप धीरे धीरे ऊपर जाओगे, धीरे धीरे हायर ऑर्बिट्स के बीच का गैप देखोगे तो वो नेग्लिजिबल होता चला जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है मैं क्वेश्चन में जाऊंगी लेकिन ये बता देती हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का, n इक्वल टू 2 में अगर इतना गैप है तो 3 में देखो और कम गैप होगा, 4 में देखो और कम गैप होगा, 5 में और कम गैप होगा, ऐसे ऐसे जाता रहता है। क्लियर? एनर्जी गैप इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ n इक्वल्स टू 1 एंड 2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, दिस क्वेश्चन इज ऑन बोर्स मॉडल। सो पहली बात तो है बोर्स मॉडल तुम लोग स्किप कर ही नहीं सकते, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल which he has developed this model for single electron system like hydrogen atom, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, etc. Okay, so Bohr's model में कुछ assumptions उन्होंने बताया था, and using the assumptions you can take out the velocity formula, R formula माने न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस, एंड सर्कुलर मोशन में है तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, and then velocity radius के साथ साथ you can take time period, you can take number of revolutions, you can take total energy formula, potential energy formula, kinetic energy formula, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जो है अगर मैं इसी में एक्सप्लेन करूँ तो आगे क्वेश्चंस तो बनेगी नहीं, सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। इफ यू वांट की बोर्स मॉडल समझा दीजिए 5-10 मिनट्स का, मैं दूसरा वीडियो बना सकती हूँ इफ यू हैव टाइम, ओके, तो मुझे बता देना कमेंट में, बट अभी मैं क्वेश्चन फोकस करने के लिए जस्ट फॉर्मूलाज बता रही हूँ। और यहाँ इस क्वेश्चन के लिए सारे फॉर्मूला एक्चुअली चाहिए नहीं, चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय ना n स्क्वायर, ठीक है। बाकी फॉर्मूलाज में साथ में बता ही देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2TE, डबल ऑफ TE कर देना, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ TE कर देना, ठीक है। ये तीनों देखो इतना आसान है, एक फॉर्मूला जानो और तीनों रिलेशन जानो तो हो गया, ठीक है, अलग से याद करने की कोई जरूरत KE काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है फाइनल आंसर सिंपलीफाइड न्यूमेरिकल वैल्यू इज 2.188 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और इसमें वेरिएबल आएगा z by m। याद रखना z इज एटॉमिक नंबर, n इज ऑर्बिट नंबर, लिख देती हूँ। ये जो z है ये एटॉमिक नंबर है, ओके, एटॉमिक नंबर, एंड जो n है ये हो गया ऑर्बिट नंबर, n जो है ऑर्बिट नंबर, क्लियर। अब आ जाओ r में, R is 0.529 angstrom. You can write it in picometer, nanometer, depending on ये point जो है आगे पीछे होता रहेगा। एंगस्ट्रॉम वाला 0.529 into क्या होगा n square by z, ओके, क्या होगा n square by z, सेम n ऑर्बिट नंबर, z एटॉमिक नंबर। टाइम पीरियड का मतलब कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को
to complete one revolution around the nucleus. So what is the time taken by any electron, okay, by that particular electron to complete one revolution around the nucleus, and that will be time period का मतलब जैसे हम पढ़ते थे ना distance by क्या होगा, speed होगा. अब distance के लिए क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है तो उसका circumference होगा, क्या होगा 2 pi r, and speed माने velocity लिखेंगे यहाँ पे, so 2 pi r by v, एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन माने 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ क्या होगा v बाई 2 पाई आर होगा. अब बोलोगे मैम 2 पाई आर बाई v में r भी अगर नहीं दिया हुआ है तो एक काम कर सकते हैं, एक फाइनल 2 पाई आर बाई v तो वेरिएबल फॉर्म में है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर्मूला. अगर r का फॉर्मूला ये वाला ऊपर का पुट करके देखो एंड v का ऊपर का फॉर्मूला, तो फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाता है 1.5 into 10⁻⁻16 सेकेंड. क्या आएगा, सेकंड में आएगा टाइम, ठीक है, एंड आ जाएगा n क्यूब बाई z स्क्वायर, तो वो भी यूज कर सकते हो. सो यही फॉर्मूला से तुम्हारा बोर्ड्स मॉडल में कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है. बट द पॉइंट हियर इज इसका डेरिवेशंस मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट. अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हो तो वेरी गुड, otherwise if you need the derivation and detailed explanation on Bohr's atomic model and other atomic models you can tell me. चलो यहाँ आ जाते हैं बेस्ड ऑन इक्वेशन. अब यहाँ सोचोगे मैम आपने तो क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी फॉर्मूला ये लिखाया, लिया हुआ तो ये है, अब क्या करें. अब कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है ये जूल में दिया हुआ है. मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर का आइडर जूल में रहता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, कभी कभी आर्क्स में रहता है, और मैंने सबके कन्वर्जन सिखा दिए हैं, ठीक है. तो उस पेज में तो ये जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम्हें पता है ना रेशियो क्या है. जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी, ध्यान देते रहना, इक्वल्स टू माइनस 13.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम जूल करने के लिए क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है. बाकी तो सेम है, आप जूल में आ जाएगा z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ पर भी तो वही है z बाई एन स्क्वायर. अगर इसको सॉल्व कर लेते हो ना, इसको अगर सॉल्व कर लेते हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, so you will get this answer. क्या मिलेगा, अब एनर्जी क्या मिलेगा, that will be minus 2.178 into 10 to the power minus 18 joule z square by n square. Okay, so अब कुछ conclusions दिया हुआ है and which of them is not correct. बहुत लोग एग्जाम हॉल में काम नहीं रहते हैं, समझ आ रहा है, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है उनका, डर लगा हुआ रहता है, एंजाइटी हो जाती है, एग्जाम खराब हुआ ही नहीं पहले से ही मन में सोच लेते हैं शायद मेरा खराब हो जाएगा, क्या होगा. ये सब नहीं सोचना है, एग्जाम हॉल में तुम्हें काम रहना है तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा. ओके अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो केमिस्ट्री में मैं कहूँगी ऑल क्वेश्चंस बन जाएगा करेक्टली ऑन गिवन टाइम. बट द पॉइंट हियर इज बहुत लोग घबरा जाते हैं, ठीक है. ओवर सीरियस इज वेरी harmful for your like physical health also, mental health also. over serious कभी नहीं होना है, हाँ serious होना है, ठीक है. confident होना है, over confident नहीं होना है, ठीक है. यानी कि एग्जाम हॉल में तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ये होनी चाहिए मैंने ये पढ़ा है, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व होगी, ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जानी चाहिए, तब भी सिली मिस्टेक हो जाती है बहुत लोगों की. तो ये चीज ध्यान देना, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, डू नॉट बी ओवर सीरियस, बी सीरियस ओनली, ठीक है. एंड एकदम पीस ऑफ माइंड रखना है, कामनेस के साथ क्वेश्चन करोगे तो लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन ये समझा रहे हैं. अगर टेंशन लगे करोगे इजी क्वेश्चन भी तुम्हें डिफिकल्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो चलो देखते हैं इसमें. equation can be used to calculate change in energy when electron changes orbit. Yes, this is correct. करेक्ट, लेकिन हमें नॉट करेक्ट पूछा है तो हम ठीक नहीं करेंगे. दूसरा आ जाओ, फॉर n इक्वल टू 1, सुनना हाँ ध्यान से, फॉर n इक्वल टू 1 माने फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, व्हिच मींस यहाँ तक तो ठीक बोला, हाँ यहाँ तक तो मुझे करेक्ट दिख रहा है, वो सही बोल रहे हैं. n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है एनर्जी का दैट इज -13.6, बट नेक्स्ट लेवल में हो जाता है -3.4, नेक्स्ट लेवल में हो जाता है -1.51, नेक्स्ट में हो जाता है -0.85. देखते जा रहे हो नेगेटिव वैल्यू ना लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं. n इक्वल्स टू 1 में ना इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी इज करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट तो है.
बट व्हिच मीन्स लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग सही है कि नहीं, एज ए होल सेंटेंस हमें चेक करना है, ठीक है। उसका मीनिंग बोले दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। बोले कि स्मॉलेस्ट जो ऑर्बिट है, जैसे कि मान लो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट क्या होगा, n equals to 1 ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें क्या लिखा हुआ है, मोर लूजली, लूजली माने ढीला, मोर लूजली बाउंड लिखा हुआ है, एक्चुअली नो, सबसे पास जब रहेगा ना, यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ एकदम राइट कॉर्नर में, देखो सब लोग, न्यूक्लियस, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है तो पास है ना, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, जब सबसे पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, टाइटली बाउंड होगा, सो ये तो लूजली नहीं होना चाहिए, वर्ड यहाँ लूजली नहीं होना चाहिए, टाइटली होना चाहिए था, मोर टाइटली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, यानी कि एज ए होल सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत हो गया, सो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, बी टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि दे आर आस्किंग यू नॉट करेक्ट। फिर भी इस क्वेश्चन का दूसरा तीसरा पार्ट में समझा देती हूँ। सी क्या है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन्स वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम, यस, इनफाइनाइट डिस्टेंस में एनर्जी निकालोगे, ई एट इंफिनिटी टेंड्स टू 0, और जैसे जैसे हम ऑर्बिट्स में आते जाते हैं एकदम लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं, दैट इज n इक्वल्स टू 1, आके सबसे नेगेटिव हो जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द रेंज, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0 तक, तो सी तो करेक्ट बोला है, लार्जर, और लास्ट पॉइंट देखो, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज ऑर्बिट रेडियस, ऑब्वियसली यहाँ ही देख लो, एन का वैल्यू 1 है तो छोटा सा ऑर्बिट है, डिस्टेंस कम है ना, और फिर n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनकरेक्ट इज बी ऑप्शन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ ये बोर्स मॉडल के जो फॉर्मूलाज है, जिसका मैंने क्लास लिया है, तुम लोग को सबको याद होगा, ये फॉर्मूलाज मैं क्लास में याद करा देती हूँ, और जिसका जो ऐसे देख रहे हैं, तो जिसका मैं क्लास नहीं लेती हूँ, इफ यू आर वाचिंग दिस देन प्लीज नोट दिस फॉर्मूलाज, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी, according to Bohr's theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Photon माने energy packets और quantum of light. Least energetic मतलब इससे मीनिंग यही बोल रहा है कि एनर्जी क्या है, मिनिमम, एनर्जी क्या है, मिनिमम, which of the following transition, एनर्जी मिनिमम, अब एनर्जी मिनिमम तभी होगी जब क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है, z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो, ये डेल्टा ई मिनिमम, क्या हो, मिनिमम, है ना, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन तभी क्या होगा, रिलीज होगा, सो कौन सा ट्रांजिशन है, 6 एंड 1, ना, सो वो तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 6 स्क्वायर माने 1 बाई 36, नहीं, ये वैल्यू तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, लीस्ट चाहिए ना, तो 6 एंड 5 में हो जाएगा 1 बाई 5 स्क्वायर माने 1 बाई 25, है ना, एक ऑप्शन है 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 36, एक है तुम्हारा 1 बाई 16 माइनस, बी में क्या होगा, 4 स्क्वायर माने 16 हो जाएगा, एंड 5 स्क्वायर माने 25 हो जाएगा, यहाँ 6 स्क्वायर माने 30, यू कैन से 6 हो जाएगा, 5 मतलब 25 हो जाएगा, और यहाँ 3 एंड 5 भी नहीं होगा, तो इसमें से ऑप्शन क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, इसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना पड़ेगा, 5 4 के बीच में या 6 एंड 5 के बीच में ही एक आंसर यहाँ होना चाहिए, ठीक है, एक बार देखो, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स ऑफ टाइम, तब तक मैं भी मन में इसको सॉल्व कर लेती हूँ, और फिर बी एंड सी में से कौन सा बता लें, सबको समझ आ ही गया होगा कि क्या पुट करना है, n1 n2 का वैल्यूज एक बार 4 5 पुट करके देखो, एक बार 5 6 पुट करके देखो, इन विच केस द वैल्यू इज मिनिमम। सो ये करने से क्या होगा, एक बार मैं दिखा देती हूँ, 13.6 मान लो, मैं सी मान लेती हूँ, ठीक है, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर, ये हाइड्रोजन एटम है, हाँ, तो वो तो 1 स्क्वायर हो गया, और बाकी 1 बाई n1 वैल्यू में अगर मान लूँ 5, तो हो जाएगा 25, एंड इफ आई टेक दिस 6, देन हो गया 6 स्क्वायर इज 36, ओके, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो इसीलिए मेन यही चीज मैटर करेगा, 1 बाई 25,
समझ आ रहा है? 1/25 माइनस 1/36, और ये वाला अगर तुम देखे, क्योंकि ए एंड बी तो डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकते हो, नहीं होगा, और ये हो गया 1/4² माइनस 16 माइनस 1/25। इन दोनों में से which is, you can say which is smaller, ठीक है, जो वैल्यू स्मॉलर होगा वही तो डेल्टा ई कम देगा। मैं मान लेती हूँ पहले ए स्मॉलर है, लेट, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का 2-3 तरीका हो सकता है, मैं जैसे कर रही हूँ उस हिसाब से अभी देखो। सो ये 1/25, ये माइनस 1/25 ये जो है, तो ये एक साइड में कर देते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें 1/25 माइनस 1/36 है और एक 1/60 माइनस 1, ये वाला वैल्यू हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पशन सही होगा, यू कैन जस्ट डू द मैथ। सो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, n equal to 6 to n equal to 5, n equal to 6 to n equal to 5 will give you the least kinetic photon. Next, the frequency of radiation emitted when the electron falls from 4 से 1 आ रहा है, मतलब बी एक्साइट हो रहा है, सेम ये भी क्वेश्चन लग रहा है मुझे सेम ही मिलेगा। हाइड्रोजन एटम तो z equal to 1 will be given, will be क्या पूछा है? frequency of radiation emitted। अच्छा, frequency is being asked when the electron falls from, ट्रांजिशन क्या है? n equals to 4 to 1 ट्रांजिशन, डी एक्साइट होगा, एनर्जी रिलीज करेगी। आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन इन जूल पर एटम एंड h दिया हुआ है। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला सीखते हैं हम कि डेल्टा ई एंड आयनेशन एनर्जी में क्या रिलेशन। डेल्टा ई इक्वल्स टू आयनेशन एनर्जी इनटू 1/n1² माइनस 1/n2², एंड ये डेल्टा ई क्या है? एच न्यू। फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, आई होप इस इक्वेशन से, मैंने जो इक्वेशन दे दी इससे तुम्हारा आंसर बन ही जाएगा, ठीक है। एच न्यू में एच ले लेना, 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। न्यू जो है वो तो तुम्हें निकालना है, और ये एच न्यू क्या है? डेल्टा ई का वैल्यू, और डेल्टा ई का वैल्यू राइट हैंड साइड क्या है? आयनेशन एनर्जी इनटू, आयनेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का? 2.18 इनटू 10 to the power minus 8 जूल पर एटम। फिर ये दिया हुआ है 1/n1 माने 1² माइनस 4² माने 16, 1 माइनस 1/16 इज, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे 15/16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -34 है, यहाँ -18 है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 6.626, और यहाँ जो 2.18 है उसको भी उधर लेके जाते हैं, 2.18, और यहाँ 10 पर -34 प्लस 18 कर लेना जितना आता है, ठीक है। ये वाला चला गया, क्या बच गया? 15/16 बच गया ना राइट साइड। ये सब मैं लेके गई तो क्या बच गया? ये वाला पोर्शन क्या है? 1 माइनस 1/16 इज 15/16, और कुछ बच गया? नहीं, न्यू निकालना है ना हमें, तो चलो और थोड़ा कर ही लेते हैं। सो 15 नीचे जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, तो 6.626 इंटू 16, एंड देन नीचे हो गया 2.18 इंटू 15, और 10 टू दी पावर क्या दिया हुआ है? -34 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? इतना। और ये पूरा वैल्यू को फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यानी कि फाइनली न्यू इक्वल्स टू, यू कैन राइट 2.18 into 15 into 10 to the power 16, then 6.626 into 16, ये वाला कर लेना पड़ेगा, और 10 to the power 15 में आंसर है देखो सारे, लेकिन मैंने 10/16 निकाला ना, तो इसको 15 कर देना, तो एक 10 इंटू कर देना पड़ेगा, और इसमें से मैं देख लेती हूँ 2.18/6.6 विल बी लगभग 1/3, एंड 15/16 विल बी लगभग 0 पॉइंट समथिंग, सो 0 पॉइंट समथिंग एंड समथिंग लगभग 3 के आसपास। तो इसमें ऑप्शन मुझे लगता है सी डी में से ही कोई होगा, कर ही लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2.18 कितना दिया हुआ है? 308.308 इंटू 10/16, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 3.08
इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सी ऑप्शन में है ना। मैं देखिए बता रही थी सी डी में से ही होगा, ए बी तो होगा ही नहीं, बिना कैलकुलेशन से भी इतना पता चल जाता है। सी डी में से एग्जैक्ट वैल्यू जो है 3 के आसपास ही आना चाहिए। तुम खुद देखो ना 6.626 बाय 2 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3, एंड 16/15 जो है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग। ओके, 15/16 और यहाँ पे हाँ ये वाला करेंगे ना हम 2.18/3.26, ओके दैट विल बी 1/3, यानी कि 0.33 टाइप का, और 15/16 विल बी वन लगभग 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0.3 समथिंग ऐसा आता है, 0.33 से थोड़ा कम, इसलिए 0.308 इंटू 10⁻16 आया था, तो 3.08 इंटू 10⁻15। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ मुझे एडिशनल बताना है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें एडिशनल क्या बताना है। ये फॉर्मूला मैं कुछ दूसरा कलर से, रुको इसको मैं डाल लेती हूँ एक बॉक्स में। जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ बॉक्स में, तो तुम लोग उस चीज़ को कॉपी में ज़रूर नोट करना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी वेरी हेल्पफुल है। क्या लिखा मैंने, डेल्टा ई इक्वल्स टू आयनेशन एनर्जी। देखो कैलकुलेशन पार्ट तो वो तुम लोग खुद से कर सकते हो, है ना, छोटे से कैलकुलेशन कितना कुछ की। मैथमेटिक्स में अभी यहाँ नहीं सिखाने जा रही कि 6.626 डिवाइडेड बाय 2.18 करो एग्जैक्ट कितना आएगा। इतना तो तुम्हें अंदाज से पता चल जाता होगा कि ये विधि नहीं होगा, क्योंकि मुझे 3 के आसपास आंसर आ रही है, तो सही करो। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा स्टेप अगर सही हो गया तो इसके बाद तो तुम ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। सो मेन चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू आयनेशन एनर्जी 1/n1² माइनस 1/n²। चलो नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा रिसेंट क्वेश्चंस नहीं है, पुराने क्वेश्चंस है, फिर भी देख लेते हैं। Who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbit? elliptical orbit के सोमरफेल्ड होगा, ठीक है, एक्चुअल डाटा है सोमरफेल्ड के बारे में, फिर भी थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लेना। ये नेक्स्ट आ जाओ, the Bohr orbit radius for the Bohr orbit radius for the hydrogen atom is approximately कितना दिया हुआ है, 0.530 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। n इक्वल टू 1 में फर्स्ट ऑर्बिट में बोर्स रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट में बोर्स रेडियस दिया हुआ है कितना, 0.530 एंगस्ट्रॉम। रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाला। अगर n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो n इक्वल्स टू 2 विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए तुम्हें रेडियस निकालना है क्या, हाँ, और सेम एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। थोड़ा पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। अब देखो सेम सैंपल है तो z सेम रहेगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसमें मैटर करेगा, n स्क्वायर। अब देखो n का वैल्यू पहले 1 था, अभी 2 हो गया, लेकिन स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर मतलब कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 4 टाइम्स जो आंसर है वो इसी को टिक करो, यानी कि 0.530 इंटू 4 करके देखो जरा कितना आता है। ये आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट, the energy of an electron in an Bohr orbit, ये तो डायरेक्ट assumption से क्वेश्चन है, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं। सो ये थोड़ा पुराने क्वेश्चन है, आई हैव स्टार्टेड विद लाइक 2021, 2022, 2019 और कुछ क्वेश्चंस है। मैं एडिशनली ये जो पब्लिकेशन से दे रही हूँ, इसके बाद और दूसरा तीसरा 3 बुक से टोटल कवर करके दे रही हूँ, क्योंकि एक ही पब्लिकेशन से देती हूँ तो कभी मुझे लगता है एक दो कॉन्सेप्ट कभी स्किप हो जाता है, एक दो क्वेश्चन वो लोग नहीं उठाते हैं तो दूसरे से, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं, अगर देखोगे तो पूरा देखना, अगर नहीं चाहिए चैप्टर ऑलरेडी तुम पूरा 100% रिविजन कर चुके हो, तो मैं फिर बताऊंगी इस वीडियो को मत देखना, उस टाइम में खुद अपना दूसरा चैप्टर जो नहीं हुआ है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं ये चैप्टर मुझे रिवाइज करनी चाहिए, तभी देखना। लेकिन वीडियो अगर देखना शुरू किया लास्ट तक देखना, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो दूसरे पब्लिकेशन का मैंने उठाया है, एंड दीस आर वेरी गुड क्वेश्चन, रिसेंट 2-3 साल में नहीं पूछा है, बट पूछ सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर नीट एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे
बढ़ती जा रहा है, कंपटीशन लेवल इज इंक्रीजिंग, यू ऑल नो ऑफ दैट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना उस बात को, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें देख के टाइम ये नहीं करना है, देख रहे हो तो पूरा देख के पूरा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके सीखो, और नहीं तो इस टाइम में ये वीडियो मत देख के दूसरा जो भी तुम्हें करना है, लाइक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री का दूसरा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ना है, जो भी करना है करो, बट बीच में स्किप करके नाम में कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, आधा वीडियो देखा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर डूइंग द चैप्टर, डू इट 100%, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, देन यूटिलाइज दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर अदर चैप्टर्स। चलो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड बोर ऑर्बिट। सो बोर ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है अगर उसकी एंगुलर मोमेंटम एमवीआर इक्वल्स टू एनएच बाय वन, यही बोला था ना उन्होंने। सो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अच्छा, ये एनर्जी का क्वेश्चन है, तो एनर्जी है, ठीक है। सो वहाँ से हम लोग और एक फॉर्मूला था यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, इस assumption से करने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी थोड़ा सा पहले हमने देख ही लिया था, क्या है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो नीचे तो एन स्क्वायर होना चाहिए, तो ये क्यूब एन 4, ये क्या है, यही होगा। चलो नेक्स्ट, in hydrogen atom d Broglie wavelength of an electron in a second Bohr orbit, कौन सा second Bohr orbit का मतलब n equals to 2 in hydrogen atom, okay, d Broglie wavelength। अब d Broglie wavelength, ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। d Broglie wavelength, d Broglie, ये फॉरेन राइटर्स अगर बोलते तो डी ब्रॉयल ऐसे बोलते हैं, तो हम इंडियन लोग हैं तो हम डी ब्रोगली जैसे लिखते हैं ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ, बट एक्चुअली डी ब्रोगली नहीं है, हम इंडियन लोग डी ब्रोगली बोलते हैं। सो डी ब्रॉयल इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है, ऑब्वियसली वो इंडियन थे नहीं तो उनके वहाँ से नाम से उस टाइप से होता है। सो लैम्डा डी ब्रोगली ही हम बोलेंगे फिर। सो ये हो गया तुम्हारा h by mv, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, h इज टाइम कांस्टेंट, mv में मास इनटू वेलोसिटी गिव्स यू मोमेंटम, तो mv के जगह p भी लिख सकते हो, डिनोटिंग मोमेंटम। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, बट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो क्या पूछा है, सेकंड बोर ऑर्बिट, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, और इस बेसिक फॉर्मूला से टोटल हम 3-4 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। और इसमें से जो यूज होगा यहाँ वो मैं बता देती हूँ, ये यहाँ पे यूज होगा 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। क्वेश्चन देख के तो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो लोग पूछ रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, माने लैम्डा पूछ रहे हैं, ये लैम्डा पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, n का वैल्यू क्या लिखोगे, सेकंड बोर ऑर्बिट है ना, 2 लिखोगे, यानी कि 2 पाई r, ध्यान देते रहना, इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 2 2 कैंसिल, ठीक है। लेकिन ये सेकंड बोर ऑर्बिट का r है, तो r डैश कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हें सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस नहीं पता, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, बोर्स रेडियस a नॉट, ये फर्स्ट ऑर्बिट की होती है। सो a नॉट जो है दैट इज योर r, एंड दैट इज हाउ मच, 52.9 पिकोमीटर। हम जानते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और n का वैल्यू सेकंड बोर ऑर्बिट माने 2 हो गया, सो r हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स, यानी कि r डैश इक्वल्स टू 4r, समझ आ रहा है। तो 52.9 का 4 गुना कर लेना, ठीक है, 52.9 का 4 टाइम्स कर लेना, and finally r dash equals to 4 into 52.9 picometer will give you 211.6 picometer, and ये value put करना r dash। so what is lambda then, so lambda equals to pi into हो जाएगा ना, 211.6 pi what picometer, that is your final answer, that is your final answer। फिर से बता रही हूँ, ए नॉट जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होता है, एंड दैट आर इज गिवन 52.9 पिकोमीटर, और हम जानते हैं ये सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए करना है, और हम जानते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, स्क्वायर भूलोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नहीं होगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, एक फिर फॉर्मूला याद करो, और उस हिसाब से r डैश विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स, 2 स्क्वायर इज 4, 4 टाइम्स, और 4 टाइम करके फिर उसको जाकर पुट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आ गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन, ये हो गया तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन। देख रहे हो हर क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं तो हर एक टॉपिक रिवाइज होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो पढ़ा हमने वो भी रिवाइज हो गया और कितना लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी पता चल गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या फॉर्मूला है वो पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। उसी दौरान तुम लोग का सारे फॉर्मूला भी याद हो जाए, है ना। 1-1.5 घंटे का जो भी करोगे ऐसा करना है कि सारा रिविजन भी हो जाए, क्वेश्चंस भी हो जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/h, यही है। अब डेल्टा पी को ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एम भी, एंड यहाँ पे मास में अनसर्टेनिटी नहीं वेलोसिटी पे है, सो डेल्टा पी के जगह एम डेल्टा बी लिख सकते हैं। इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन है एनर्जी टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें यही फॉर्मूला की जरूरत है। वी नीड ओनली दिस फॉर्मूला फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिवन बाय हाइजेनबर्ग। सो देख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब फिर से इसी दौरान में एक टॉपिक एक चीज़ बता देती हूँ। एनी वन ऑफ यू जो जैसे कि मान लो जो 1 साल प्रिपेयर किए हैं फॉर एंट्रेंस, उन लोग का तो अब तक हो गया होगा, वो सिर्फ रिविजन के लिए वीडियो देखेंगे। बट ऐसे भी हो सकता है कि 11th-12th में 11th तक तो थोड़ा कोविड का इशू था, तो वो लोग का हो सकता है अच्छे से प्रिपरेशन 11th की पोर्सन नहीं हुई होगी, 12th का हुआ होगा। लेकिन जैसे कि सीबीएसई के लोग देते देते जून का कितना तारीख हो गया, तो उन लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस बार जेई या नीट के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को। तो और प्लस वो लोग 12th में फोकस थे, तो 11th में हो सकता है रिविजन किए ही नहीं हो वो दिन से, तो ऐसे भी हो सकता है। तो whenever you are going through this video and seeing any question solving by me, तो उस चीज़ को ध्यान दो कि ये कौन सा टॉपिक का मैम बोल रहा है, और वो जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है या टीचर का नोट है, जो भी टीचर है, तो उस चीज़ को उठा के पढ़ो कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, तब जाके तुम्हें ये फॉर्मूला समझ आएगा, तब जाके ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान देना। दिस इज नॉट लाइक फॉर द स्टूडेंट जो कि कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको एक लिंक मिल जाएगी फ्रॉम माय क्वेश्चंस। समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। हाँ ये है कि एकदम अभी जैसे 11th में बच्चे आए हैं 10th पास करके, वो लोग भी जैसे सेकंड चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आफ्टर मोर कॉन्सेप्ट चैप्टर, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, तो उनको ये सब करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में अभी चल रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उस हिसाब से नोट्स से देखे या फिर डायरेक्टली यहाँ से देखे, तो वो लोग भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। सो एक आइडिया तो लग जाएगी ना कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वी आर ऑन ट्रैक और नॉट, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोजीशन माने ये हो गया डेल्टा एक्स, ओके। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, देखो मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 to 10 power 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी भी दिया हुआ है, एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी, यानी कि डेल्टा भी दिया हुआ है। समझ आ रहा है डेल्टा भी कैसे दिया हुआ है, डेल्टा भी इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी दिया हुआ है। समझ आ रहा है कितना परसेंट एक्यूरेसी, 0.001% का मतलब 0.001 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 3 into 10 to the power 4, तब जाके डेल्टा भी निकलेगा। चलो कर लेते हैं इसको। डेल्टा एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। यानी कि डेल्टा एक्स निकालने के लिए मैं h/4 तो इधर रखूंगी, और उसके साथ साथ यहाँ m डेल्टा भी चला जाएगा। अब डेल्टा एक्स के लिए h/4 जो है, ध्यान देना, यूज h/4 इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर h, अच्छा h का वैल्यू दिया हुआ है ना, वही पुट करना होगा 10⁻⁻27 आर्क्स सेकंड। तो ये आर्क सेकंड में है, जूल सेकंड में नहीं है, ध्यान देना। और h तो मैंने पुट कर दी 4 एंड m डेल्टा भी, m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ध्यान देना जब आर्क्स लिखते हो ना तब ग्राम से करना होता है, अब जब जूल लिखते हो, जूल इज ऐसा यूनिट, तब ग्राम नहीं किलोग्राम लिखना होता है। तो हमेशा ध्यान देना, whenever you are using ऐसा यूनिट then use SI, whenever you are using CGS then you use CGS, तो सेम यूनिट में होनी चाहिए, then only you can like multiply, divide और जो भी मैथमेटिकल टूल से यूज कर सकते हो, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर। तो चलो आगे क्या रह गया, हाँ डेल्टा भी रह गया ना, डेल्टा भी। अब डेल्टा भी निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ क्या करोगे, डेल्टा भी कैसे निकालोगे। सो डू वन थिंग हियर,
डेल्टा भी कितना दिया हुआ है वेलोसिटी, ये 3 इंटू 10⁴, ओके 3 इंटू 10⁴, और उसमें कितना होगा 0.001, यहाँ कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा भी इक्वल्स टू कितना परसेंट होगा, 3 इंटू 10⁴ का कितना परसेंट होगा, 0.001%, यानी 0.001 मतलब 10⁻³ और 2 10⁻⁵, यानी कि 3 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁵, यानी कि ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रही हूँ 0.3 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो चलो लिख लेते हैं डेल्टा भी, 0.3 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारी चीज़ें किसमें हैं, आर्क्स, ग्राम, सेंटीमीटर, सारे मैचिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना, 10⁻28 है, 10⁻27 है, इसको काट दो तो एक हो गया 10, तो ऊपर हो गया 6.626 इंटू 10, नीचे हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.3, तो ये कितना होगा। सो लगभग अगर हम देखें 3 नीचे देखें तो 3 4 12 हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो हो गया नीचे 2 आ जाएगा 6.626 इंटू 10, 1.93 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लो क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन है ना नीचे, देख लेते हैं क्या ये न्यूमेरिकल नहीं करके भी चल जाता, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे राइट साइड मिटाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, ये तो हो ही गया होगा, एकदम सिंपल है। ये फॉर्मूला जो है उसको मैं ब्लैक बॉक्स में डाल देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने। सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग का हो गया इस क्वेश्चन से, यू कैन से रिवाइज। चलो ये वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि इस चार ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन बोर्स मॉडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं। Energy of electron in the orbits are quantized. Energy of electrons in the orbits are quantized. ठीक है, electron in the orbit nearest the nucleus is lowest energy. क्या बोला, electron in the orbit nearest the nucleus. nucleus का सबसे nearest हो गया n equals to 1, उसमें बोला है lowest energy. ओके ठीक है, electron revolve in different orbit around the nucleus. हाँ है ना, different orbits में ही तो revolve करेगा. And position and velocity of electron in orbit cannot be determined simultaneously. ये ही statement तो हाइजेनबर्ग ने बोला है ना, ये तो हाइजेनबर्ग ने बोला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। बोर तो सब सर्टेनिटी के साथ बोले थे, है ना, बोले सब सर्टेनिटी के साथ बोले थे, assumptions लगा लिए थे, फिर पूरा सर्टेनिटी के साथ बोल लिए थे कि सेंटर ऑफ द एटम, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था न्यूक्लियस, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दीस टू थ्योरीज हैज बीन यूज्ड बाय बोर, ताकि वो अपना मॉडल डेवलप कर पाए। तो अपना मॉडल डेवलप करते वक्त उन्होंने यूज किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। फिर ये सब सारी चीजें यूज करके उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल लिया फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन स्पेसेस, तो जो हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने वहाँ पे ये पोजीशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला, नहीं कर सकते मतलब तो ये आंसर ठीक हो गया ना, अप्रोक्सीमेशन हो गई, एरर वाली बात हो गई, तो ये तो हाइजेनबर्ग ने बोला बोर का मॉडल को कंट्राडिक्ट करते हुए। इज इट क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर मोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हिच नेचर, particle like nature or wave nature, particle nature of you can say microscopic particle electron. ओके, सो देखो सारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होती है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही हो, ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यू कैन इमेजिन दे हैव ड्यूअल नेचर। ठीक है, they have dual nature, they can behave as wave as well as particle.
So Bohr's model is based on particle nature. ध्यान देना उस बात को. And Bohr सारे जो मॉडल के postulates सारे चीजें जो है with certainty बताए. But with certainty cannot 100% एक्यूरेसी के साथ हम with certainty बोल ही नहीं सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर क्या चल रही होगी. Yes, so there should be some error. And उसके बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया कि actually there can be a probability of finding electron in a circular path. There can be a probability of finding the velocity of electron कि कितना स्पीड से वो घूम रहा होगा. But there is not a certainty that 100% correct हम आंसर इसका निकाल सकते हैं. Is it clear? So हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है जो डी है, जो कि बोर ने नहीं कहा था. चलो आगे. बोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. पर हाइजेनबर्ग ने बोला कि नो नो, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते एरर पे. देयर विल बी सम एरर. 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग एनर्जी. करेक्ट ऑप्शन. तो ये भी रिसेंट क्वेश्चन है, ये 2019. तो बताओ जरा 4d 5p इसमें ना क्या करेंगे, जब भी ऐसे ऑर्बिटल्स होती है तो उसमें एक रूल हम लगाते हैं n प्लस एल. ओके, अब यहाँ पे n प्लस एल रूल क्या है, ये n जो है ना ये ऑर्बिट का नंबर बताता है which is actually principal quantum number. एंड जो ये l है इट इज नोन एज azimuthal quantum number. इसको क्या बोलते हैं हम, azimuthal quantum number. और ये n प्लस एल कैसे करेंगे, जैसे कि एक है 5f, ठीक है. अब 5f का मतलब होगा 5 प्लस f के लिए l का वैल्यू 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर देगा, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट का f सबशेल. f सबशेल के लिए क्या होगा, जैसे कि अगर देखोगे l इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f. समझ आ रहा है. ऐसे 4 का मतलब इसके आगे जाएगा g h i इस टाइप का. सो f का मतलब होता है कितना 3, तो आंसर कितना आया 8. 5f का 8 आया. 6p का अगर देख ले तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 6 माने ऑर्बिट नंबर 6, p का मतलब l का वैल्यू 1 है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल नंबर दैट इज 7. ऐसे करो, नेक्स्ट करो 4d करो, तो यहाँ 4 है ऑर्बिट नंबर 4. एंड d के लिए, यहाँ d के लिए कितना होगा l का वैल्यू 2 दैट इज 6. एंड देन व्हाट इज लेफ्ट 5p. 5p के लिए हो गया यहाँ 5 एंड p के लिए हो गया 1, ये भी 6. So ये दोनों इक्वल है. एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन n plus l value is equal, when n plus l value equal then n डिसाइड करता है. अगर n का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n का वैल्यू कम तो एनर्जी कम. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर दोनों 6 6 4d 5p है तो 4d की एनर्जी क्या होगी, 4d की एनर्जी थोड़ा कम होगी क्योंकि उसके ऑर्बिट नंबर 4 है ना, तो इनसाइड आ जाएगी, न्यूक्लियस की करीब आ जाएगी. बट 5p विल बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ हायर एनर्जी. जब ऐसी होती है n प्लस एल वैल्यू सेम, तब हम n से डिसाइड करते हैं, ना कि n प्लस एल, अदरवाइज n प्लस एल. तो चलो सबसे ज्यादा तो मुझे 5f दिख रही है, देन 6p दिख रही है, एंड देन 5p, 5f 6p 5p 4d, यानी कि बी ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, orbital having three angular nodes and three total node is. Orbital having three angular node and three total node. चलो इसको करते हैं. एंगुलर नोड एंड टोटल नोड एंड रेडियल नोड क्या है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आई हैव टू रब द राइट हैंड साइड. इसको मैं मिटा देती हूँ. हाँ, ये वाले तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा. सो लेट मी जस्ट रब दिस. सो नोड क्या है, सो नोड माने द रीजन इनसाइड एन एटम, ओके, where the probability of finding electron is minimum or zero. ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा. उसका ऑपोजिट सोचो, उसको क्या बोलोगे, नोड बोलोगे. यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहा है ना, सो देयर इज नॉट अ सर्टेन पॉइंट कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा. सो जो प्रोबेबल रीजंस है वेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर, लाइक जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑर्बिटल्स लाइक s p d f. लेकिन ध्यान देना, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो, जीरो हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो ही ना,
दैट इज नोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं होने की जो जगह है। सो चलो हम लिख लेते हैं ऑर्बिटल क्या है, 3D रीजन है ना, 3 डायमेंशन रीजन जो भी होगा इनसाइड एटम अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is highest, maximum। एंड इसका ऑपोजिट सोचो नोड, नोड क्या है, सेम 3D रीजन, ठीक है, जहां पे probability of finding electron minimum, you can say 0। अब नोड आर ऑफ टू टाइप, एक तो रेडियल नोड, रेडियल का मतलब रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि न्यूक्लियस से कितना दूर जाएं तो हमें ऐसा नोड दिखेगा, वो रेडियली। और एक है एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थीटा फाई ऐसे। सो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें दैट इज एंगुलर नोड। तो दो नोड है, एक तो एंगुलर नोड है और एक रेडियल नोड है। रेडियल नोड का फॉर्मूला है कि हाउ मेनी रेडियल नोड्स यू कैन कैलकुलेट, दैट इज n माइनस l माइनस 1, ठीक है। इससे आगे डिटेल्स में नीड में नहीं पूछते हैं, अगर जेई के होते तो मैं इसमें और थोड़ा सा आगे जाती, रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ वगैरह थोड़ा बता देती, बट यहाँ पे तुम्हें जस्ट रेडियल नोड एंगुलर नोड क्या है इतना तक जानने से चल जाता है। और नहीं एंगुलर नोड्स में अगर हम देखेंगे एल होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला एल फॉर अजीमुथल नंबर एंड रेडियल नोड के लिए n माइनस l माइनस 1। तुम्हें पहले तो एंगुलर नोड पूछा है यानी कि l वैल्यू निकालो, ठीक है। सो ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, 3 एंगुलर नोड का मतलब l का वैल्यू वो लोगों ने बता दिया क्या है 3। अब 3 किसके लिए होता है, 3 p के लिए नहीं होता, d के लिए नहीं होता, d के लिए नहीं होता, f के लिए होता है, सी ऑप्शन। एंड 3 टोटल नोड्स बोला गया है, क्या बोला है, 3 टोटल नोड्स बोला गया है। सो यहाँ पे हम ध्यान देंगे टोटल नोड्स क्या है, टोटल नोड्स का मतलब रेडियल प्लस एंगुलर, करो ना, n माइनस l माइनस 1 प्लस l करो। सो n माइनस l माइनस 1 माइनस l का मतलब l, l कैंसिल, तो n माइनस 1 हो गया ना। सो ऑर्बिट नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 दिया हुआ था। सो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो सही है ना, क्योंकि वो लोग तो वही बोले हैं 3 नोडल, यू कैन से 3 टोटल नोड्स, तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, व्हिच इज करेक्ट, सी, सी सही है। ओके, सो ये वाला पार्ट जो है इसको ध्यान से देख लेना। टू टाइप ऑफ नोड्स आर देयर, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड इज l, एंड टोटल का हो गया n माइनस l माइनस 1 माइनस l, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था ए वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिसेंट है, 2018 की क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, हाँ इनकरेक्ट, रॉन्ग। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, दैट इज करेक्ट। तो हमें रॉन्ग टिक करना है, हम टिक नहीं करेंगे। दूसरा, एन ऑर्बिटल इज, अब बोलोगे मैम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो हम बता देते हैं यहाँ पे साइड में। कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यू ऑलरेडी नो, ये सारी चीजें फिजिक्स में भी डिटेल्स में करते हो। Here, orbital angular momentum actually leads to what? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, it is revolving around the nucleus and it is having a circular motion. Because of the circular motion, it will be generating angular momentum. ठीक है? So इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर l into l plus 1, okay? h by 2 pi. h by 2 pi स्क्वायर रूट के बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर l into l plus 1। अब l into l plus 1 में l अजीमुथल नंबर है और ये s ऑर्बिटल, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का l वैल्यू क्या होता है, और s ऑर्बिटल l वैल्यू इक्वल्स टू 0। सो ये 0 into समथिंग, तो पूरा आंसर क्या मिलेगा, सो पूरा आंसर तो 0 ही मिलेगा ना, तो ये 0 लिखा है तो सही है ना। दूसरा ऑप्शन जाओ, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers।
यस, कौन सा ऑर्बिटल है बोलने के लिए तुम्हें ऑर्बिट बतानी होती है ना। ऑर्बिट ये वाला, जैसे कि मैंने बोले 4f, तो तुम्हें आइडिया लग गया, अच्छा फोर्थ ऑर्बिट का f सबसेट है ना। ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम, m तक बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर मैंने बोल दिया p ऑर्बिटल, तो p has 3 ओरिएंटेशन, px py pz, so to know कि which one, कि px की बात कर रहे हैं या py की बात कर रहे हैं, or whether we are talking about pz, we need to know the magnetic quantum number also। तो ऑर्बिटल के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, आउट ऑफ टोटल 4 क्वांटम नंबर। टोटल कितना क्वांटम नंबर्स है, 4 क्वांटम नंबर्स है। क्या क्या, प्रिंसिपल n, देन अजीमुथल l, मैग्नेटिक m, and then spin s। तो तुम्हें ये 3 NLM पता होना चाहिए। एंड स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता चलती है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर, सो यस ठीक ही बोला अब तक। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ये गलत है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का ना एटॉमिक नंबर क्या है 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2p3। 2p3 माने p इज हाफ फिल, हाफ फिल का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अप स्पिन है, तो ये डाउन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी अप, है ना, इट हैज टू बी अप, और इसीलिए ये गलत है। सो ये स्पिन ना उन लोगों ने गलत ड्रॉ किया, इसीलिए तो पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सो वी विल टेक रॉन्ग ऑप्शन सी है। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0, ये भी सही है। सो सी होगा यहाँ सिंगल चॉइस, सी होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा नीट 2018 में। चलो आज हमेशा ध्यान देना, एज पर हंस रूल हमेशा इलेक्ट्रॉन जब हाफ फिल करेंगे पहले सेम स्पिन वाला करना चाहिए, देन पेयरिंग स्टार्ट्स, यानी कि ऑपोजिट स्पिन, फिर कंटिन्यू करोगे। ठीक है, ऐसे आप अप डाउन या अप डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल वैलिडेट, यू कैन से इट विल नॉट वैलिडेट मैक्सिमम स्पिन ऑफ, यू कैन से मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो हंस रूल के थ्रू हम पढ़ते हैं। अभी फिलहाल इतना याद रखो, हंस रूल ये नहीं करता है, हंस रूल ये करता है कि अगर आप किया ना तो सारे आप सिंगल 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 खत्म हो तब डाउन डाउन करना। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी रिसेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज फ्रॉम 2017 नीट। इतना सही लिखना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आ जाओ, which one is wrong statement, uncertainty principle delta E delta T greater than equal to h by 4 pi, ये सही है। हाँ, मैंने अभी थोड़ा पहले बताया था ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा x इनटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi को और लिख सकते हो, बोला था ना एनर्जी टाइम के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला उन लोगों ने दिया है, ये सही है। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि तुम्हें देखो क्वेश्चन के दौरान दूसरा फॉर्मूला भी यहीं से पता चल गया। नेक्स्ट, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, यहाँ तक सही है, ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी सही है, ग्रेटर सिमेट्री सही है, एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ये भी सही है। सो ए बी तो सही है, रॉन्ग ढूंढना है। थर्ड, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p, सही है यहाँ तक, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन नो, ये गलत हो। ऐसा क्यों, देखो हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एल वैल्यू मैटर नहीं करता। सो एस ऑर्बिटल हो पी ऑर्बिटल हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर ऑर्बिट नंबर सेम है ना, एनर्जी सेम हो, यानी कि 2s 2p का एनर्जी इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता है। क्या होता है, इक्वल वर्ड लिखना चाहिए था, इसीलिए सी है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं देके मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं कोई दूसरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक सोडियम एटम, कॉपर एटम, जिंक एटम, कुछ भी कोई दूसरा एटम, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एटम होता ना तो ये सही हो जाता। क्लियर, बट ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में इट शुड हैव बीन इक्वल इंस्टेड ऑफ बीइंग लेस देन। लास्ट ऑप्शन तो ये तो फॉर्मूला है, ये तो सही है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2017 नीट में आया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जल्दी जाएंगे। How many electron can fit in the orbital for which n equal to 3, n equal to 1, n equal to 3 माने थर्ड ऑर्बिट, l equal to 1 माने p, so 3p। क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर व्हिच n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 1। यहाँ पे l इक्वल टू 1 बोल दिया है, यानी कि 3p, तुम्हें m का वैल्यू नहीं बोला गया है, यानी कि तुम्हें टोटल p लेना होगा, एंड टोटल p लेने से 6 होगा, ध्यान देना। लेकिन अगर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 के साथ तुम्हें बोल दिया जाता, ठीक है, कि px py pz, तब दो 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 होता, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर व्हिच, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे इसमें कैसे करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द, अच्छा
इसमें ए होगा। हाँ, इन द ऑर्बिटल्स होता तब सी आंसर होता सही, तो इसमें ध्यान देना, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, दैट इज योर 3p। 3p में 3 हो सकता है ना, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। यहाँ ऑर्बिटल्स नहीं है, ऑर्बिटल्स होता तो 6 होता। इट इज रिटन ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल, क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल, इसको फोकस कर लेते हैं। द ऑर्बिटल माने एक ऑर्बिटल, तो इसमें से कोई भी एक ऑर्बिटल, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, ठीक है। 6 इन द ऑर्बिटल्स में होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन फिट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 6, बट हियर इट इज इन द ऑर्बिटल, तो कोई भी एक ऑर्बिटल में कितना होगा, 2 2 2, इसलिए हम 2 को टिक करेंगे, ठीक है। Which of the following pairs of d orbital will have the electron density along the axis, माने axial। तो ये तो तुम लोग कर ही लोगे, जैसे कि रिसेंटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब तुम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हो CFT, उस टाइम में पहला सेंटेंस वहीं से शुरू करते हैं कि d का जो 5 ऑर्बिटल में से कुछ एक्सियल है, कुछ नॉन एक्सियल है। तो जब भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पढ़े होंगे है ना, तो एक्सियली लिगेंड्स आता है, तो एक्सियल जो ऑर्बिटल्स है वो रिपल्शन होके उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है फ्रॉम द एवरेज लेवल। तो ये एक्सियल, तो उस टाइम में तुम लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मैं 12 का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 11 में पढ़े हो, दिन हो गया होगा, बट एटलीस्ट 12 का फिर से रिवाइज हुआ था जब तुम लोग 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे, डी ऑर्बिटल की शेप्स वगैरह फिर से एक बार रिवाइज हुआ होगा। वैसे तो हम 11 में ही पढ़ लेते। तो एक चीज ध्यान देना, इसमें ऑप्शन होगा dz² इज अबाउट z एक्सिस एंड dx² माइनस y²। तो इसमें ऑप्शन होगा dz² एंड dx² माइनस y²। d इज टुवर्ड द एक्सियल, एक्सियल माने एक्सिस के अलोंग होगा, और एक्सिस के इन बिटवीन जो होता है, ऊपर नहीं होता एक्सिस के, अलोंग नहीं होता, बट इन बिटवीन होता है, तो वो होता है dxy dyz एंड dxz, वो तीनों नॉन एक्सियल है, और हमें पूछा गया है एक्सियल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें इस पेज का, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में है, यानी कि उसकी NLM सेम है, तो क्या स्पिन, स्पिन होगा, स्पिन क्वांटम नंबर से उसको पता लगाएंगे। Which is the correct order of increasing order of listed? Which is correct order of increasing energy of listed orbital in the atom of titanium? ठीक है, increasing energy। हाँ, तो क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा सा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैंसिल करें, ये आधा आया, पूरा आया नहीं, ऑप्शंस क्वेश्चन आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि हम स्कैन किए थे ना, वो आया नहीं, वैसे भी पुराना क्वेश्चन ही होगा वो। रूट ओवर l इंटू l प्लस 1, इसमें हो जाएगा l2 है ना, l का वैल्यू 2, 2 इंटू देन 2 प्लस 1 इज 3, h बाई 2 पाई को यहाँ पे ये लोग h बार ऐसे लिखे हैं, ठीक है, इसको लिखे हैं ऐसे, यानी कि √6h ये होगा। Next one is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum numbers. n equals to 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, l equals to 1 मतलब p, ml equals to 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देखो m का 3 वैल्यू होता है, -1 +1 0, तो कितना ऑर्बिटल होगा, एक ही होगा ऑब्वियसली। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन पूछते तो 2 होता, ऑर्बिटल होगा तो 1। नेक्स्ट, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, Gd माने गैडोलिनियम, हाँ, Gd माने गैडोलिनियम, एंड ये आया है एटॉमिक नंबर 64। सो ये ना एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद कर लेना। जैसे गैडोलिनियम को याद करना, मैं बता रही हूँ क्या क्या याद करना है तुम लोग को बुक से, ठीक है। अगर क्लास में हो रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी है तो खुद से भी कर सकते हो। गैडोलिनियम याद कर लेना, देन याद कर लेना है गोल्ड प्लैटिनम, देन याद कर लेना है स्टार्टिंग का बता देती हूँ पहले 3D सीरीज में, कॉपर एंड क्रोमियम, है ना। क्रोमियम इज 24 एटॉमिक नंबर, कॉपर इज 29, ठीक है। लैंथेनम, सीरियम, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं याद कर लेना है। सो गैडोलिनियम क्यों एक्सेप्शनल है, सो इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC क्यों है, सो इसमें टू फुलफिल द हाफ फिल स्टेबिलिटी, हम जानते हैं कि जब भी ऑर्बिटल हाफ फिल या फुलफिल होता है, हाईली स्टेबल होता है, एंड टू बिकम हाईली स्टेबल ये हाफ फिल अटेन करने की कोशिश करता है, एंड करने की कोशिश में, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। और जब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा तो है नहीं, जितने हैं उसको तुम्हारा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेप्शन नहीं है तब तो तुम नॉर्मल जो भी अबाउ रूल यूज़ करके, अबाउ चार्ट को फॉलो करके लिख ही सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हम यहाँ से देख लेते हैं। 4 F इसमें होना चाहिए 7, F हाफ फिल होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही नहीं है,
सही नहीं है, सही नहीं है, देखो 4f7 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विद l इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4। l इक्वल टू 3 माने थर्ड, n इक्वल टू 3 माने फोर्थ, n इक्वल टू 4 लिखा हुआ फोर्थ सेल, फोर्थ सेल, n इक्वल टू 4 माने फोर्थ सेल, l इक्वल टू 3 माने s p d f, f होगा 4f होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो 4f में टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, f में 7 ऑर्बिटल होगा, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्स 14। इसीलिए तो एफ सीरीज जो होती है ना, 4f सीरीज, 5f सीरीज, टेंशनॉइड एक्टिनॉइड में एक सीरीज में एक रो में कितना एलिमेंट्स दिखाई देता है, 14 14। नेक्स्ट, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, ये है रुबिडियम। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ सीरीज है ना, 3D सीरीज एलिमेंट स्टार्ट्स विद स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये कहाँ से कहाँ, 21 टू 30। नेक्स्ट जो 4D सीरीज है, 3D सीरीज इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज से शुरू होती है एंड 3D कम्स इन द फोर्थ पीरियड, ध्यान देना, लेकिन थर्ड पीरियड नहीं। देन 4D सीरीज जो है, इट स्टार्ट्स विद यट्रियम, ओके, जिर्कनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, देन कैडमियम। वन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तुम्हें क्या पूछा है, रुबिडियम ना, रुबिडियम कम्स इन 37, सो रुबिडियम एक्चुअली यहाँ आएगा एस ब्लॉक में, ठीक है। सो एस ब्लॉक में अगर आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ये ना, सो यहाँ पे ये है रुबिडियम, सो इसकी हो जाएगी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 5 हो जाएगी, यानी कि ये तो होगी नहीं, एंड देन 5s होगी, ऐसे, तो 5s होने के कारण 50, तो दूसरा भी 0 ही होना पड़ेगा, तो 511 नहीं हो सकता, ठीक है, एंड 510 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 l का वैल्यू होने से p हो जाएगा, एंड यू नो s ऑर्बिटल है, ये s ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है, लाइक ग्रुप है, ग्रुप 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c। नेक्स्ट चलो आगे आगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन, ये तो कर ही सकते हो रूट ओवर l इंटू ऐसे करके, है ना, तो इसमें आंसर क्या होगा, रूट ओवर l इंटू l प्लस 1 में l क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, p के लिए l का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1, h बाई 2 पाई, कर लो जरा ये, तो हो गया रूट 2 h बाई 2 पाई, रूट 2 h बाई 2 पाई, रूट 2 कैंसिल होने से h बाई रूट 2 पाई, h बाई रूट 2 पाई। Consider the following set of quantum numbers. Next question. Next question. Which of the following set of quantum number is not possible? ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं हटा दिया था ना इसको। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, पहले तो इसको कंसीडर करो, बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एंड देन इसको देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिखो, थर्ड ऑर्बिट में l वैल्यू 0 m वैल्यू 0, ओके, पॉसिबल है, पॉसिबल p, एंड देन सेकंड शेल के लिए, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में l का वैल्यू सेकंड तक नहीं जा सकता, 1 तक ही जा सकता है, तो ये जो है ये स्ट्राइक करेक्ट है, ये फॉल्स है, हमें नॉट पॉसिबल ही पूछा है, यानी नॉट पॉसिबल में 2 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 4 के बाद 3 हो सकता है, हाँ, और 3 का -3 टू +3 तक आता है, तो -2 भी अंदर आ जाएगा, हाँ, तो माइनस, ये पॉसिबल है, हमें नॉट पॉसिबल लास्ट में टिक करना है, हाँ, इसलिए ध्यान देते रहना। देन नेक्स्ट 1 का 0 हो सकता है, अगर 0 होने से -1 नहीं हो सकता, ये भी नॉट पॉसिबल है। लास्ट 3 2 3 ये भी नॉट पॉसिबल है, तो क्या क्या नॉट पॉसिबल, 2 4 5, 2 4 5 कहाँ है, 2 4 5 हो गया। अच्छा, तो with this we have completed the questions from one of the publication, जिस publication से मैंने ये questions उठाए थे, recent questions भी थे, 2000 से 2021 तक का था, और कुछ 1995 99 ऐसे लास्ट का भी कुछ questions था, लेकिन ध्यान देना majority of the time 2000 के above के questions को टारगेट करना, ठीक है, फिर भी ये पूरा जितना मुझे लगा कि दिखा देना चाहिए मैंने दिखा दिया। अब इसमें कुछ questions एम्स के होंगे रिसेंट, जब एम्स का अलग से एग्जाम हुआ करता था, ठीक है, चलो, सो एम्स 2008, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 मिलीग्राम मास डिफर, अब यहाँ पे मास दिया हुआ है कितना, 2 मिलीग्राम, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि जिसमें टिक क्या हुआ है ना रेड, वही मैं बताऊंगी, क्योंकि बाकी करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी वो दूसरे पब्लिकेशन में कर चुके हैं, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर नेसेसरी। ये क्वेश्चंस जो है उस पब्लिकेशन में मुझे मिला नहीं बुक में, तो मैं इस क्वेश्चन दूसरे से उठा के ये दे रही हूँ, तुम लोग इसलिए इसको ध्यान से देखो। एनर्जी इक्विवेलेंट, पहला जो क्वेश्चन नंबर 145 है ना, इसको क्या करना, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर कर देना, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू मास एंड स्पीड ऑफ लाइट होल स्क्वायर। अब इसमें मास दिया हुआ है 2 मिलीग्राम, ठीक है, उसको ग्राम कर लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आर्क्स में दिया हुआ है, ग्राम में हो जानी चाहिए। एंड जो सी है वो तुम्हारा हो जाना चाहिए मीटर पर सेकंड, नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, मास 2 मिलीग्राम ना, 2 मिलीग्राम मतलब 2 टू द पावर माइनस 3 ग्राम लिखना, मास हो गया। सी क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 नहीं, 10 टू द पावर 10 लिखना, क्योंकि मीटर पर सेकंड नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड करेंगे और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। इसको करके देखते हैं, चलो कितना, 3 स्क्वायर माने 9, 9 टू ज़ा 8, एंड देन 10 टू द पावर यहाँ -3 है, और यहाँ 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 10 टू द पावर 20। अब 10 पावर -3 20 का मतलब 17 हो गया, है ना। सो 17 हो गया, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 17 आर्ट्स। ऐसा कोई आंसर है क्या? एक है, लेकिन ऐसे है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 18 कर दिया, ठीक है, आर्ट्स ऐसे है। सो व्हिच ऑप्शन, डी ऑप्शन, इजी। चलो नेक्स्ट 147 में आ जाते हैं, 147 में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। The uncertainties in the velocity of two particles, ये भी uncertainty principle question है। uncertainty velocity of two particle A and B है, तो दो पार्टिकल है, एक का 0.05 है और दूसरे का 0.02 है रेस्पेक्टिवली। ध्यान देना, A का 0.05, B का 0.02। मास ऑफ B इज 5 टाइम्स दैट ऑफ मास A, समझ आ रहा है? मास ऑफ B जो है ना, दैट इज 5 टाइम्स मास ऑफ A। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज? अब ध्यान दो, फॉर्मूला था डेल्टा x, okay, delta x into you can say m delta b is greater than equal to ले लेते हैं यहाँ पे h by 4 pi। अब ध्यान देना, ये h by 4 pi साइड जो है सेम सेम ही है ना दोनों के लिए। अब ध्यान देना, अगर हम करें, यहाँ से क्या निकलेगा, दो के लिए लिखना है, एक बार तो a के लिए लिखोगे तो ये भी a के लिए हो जाएगा, मास भी a के लिए हो जाएगा, और एक बार क्या करोगे, b करोगे, है ना, मास b के लिए हो जाएगा, डेल्टा भी b के लिए हो जाएगा, ये भी क्या है, h by 4 pi। समझ आ रहा है? सो दिस इक्वल्स टू दिस हम कर सकते हैं, ओके क्लियर। तो उस हिसाब से डेल्टा एक्स ए बाई डेल्टा एक्स बी क्या निकलेगा। सो फाइनली हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे डेल्टा एक्स ए बाय डेल्टा एक्स बी, क्लियर। तो डेल्टा एक्स ए बाई डेल्टा एक्स बी अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसमें एम बी डेल्टा भी बी एंड नीचे एम ए डेल्टा भी ए। अब ये एम बी एंड एम ए का रिलेशन क्या था, पहले लिख लेते हैं। एम बी इज 5 टाइम्स, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, 5 आ जाता है ना, 5 टाइम्स एक दूसरे का। एंड इसमें ना b जो है दैट इज 0.02, ये b जो है 0.02 एंड a है 0.05, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया 0.05 से 5 करने का मतलब 100 हो गया, एंड 0.2 इंटू 100 का मतलब आंसर फाइनली 2 आ गया। तो फाइनल आंसर 2:1, रेशियो कहाँ है, ठीक है। सो देख सकते हो दो बार हम लोगों ने लिख लिया, एक बार ए के लिए लिखा फॉर्मूला, सेम सिमिलरली बी के लिए लिखा, और इक्वेशन ये 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो, आंसर आ गया 2। चलो 149, सो क्वेश्चन नंबर 149 आई विल बी सॉल्विंग इट हियर। सो क्वेश्चन नंबर 149 में ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है ये स्क्रीन पूरा नहीं भी आ सकता है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है ना, तो मैं 2 को थोड़ा सा ना ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, अदरवाइज पता चला बाद में दिखाया कि 2 बोल रही है मैम, लेकिन 2 कहाँ लिखी पता ही नहीं चला, 2 यहाँ, ठीक है। और 149 रिक्स नहीं लेती हूँ, नीचे मैं नहीं लिखती हूँ, कहाँ तक स्क्रीन रिकॉर्ड होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। सो इसमें से मैं 145 को मिटा के यही करती हूँ, लार्ज इरेजर। So whenever I rub these things,
क्योंकि ये रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगी, तो तुम लोग उसको स्किप कर लेना 10 सेकेंड, देन क्वेश्चन पहुंच ही जाओ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 149। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ध्यान से देखते रहना, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई में बोला गया कि मोमेंटम एंड पोजीशन जो है डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों सेम है, इक्वल है। तो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी निकालना है, बट वेलोसिटी डेल्टा एक्स फॉर्मूला में नहीं होता, डेल्टा पी में होता है। तो क्या करो, डेल्टा एक्स को भी डेल्टा पी मान लो, तो डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगा। यस, अब डेल्टा पी क्या है, एम डेल्टा भी होल स्क्वायर है ना, डेल्टा पी इज एम डेल्टा भी एंड होल स्क्वायर कर दो। एक दो स्टेप और कम कर सकते हो, हाँ, ताकि सबको समझ आए। मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लिखती हूँ, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मेरे जैसे सब स्टेप मत लिखना, ठीक है। जितना हो सके मन में कर लेना, यहाँ तक तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन ऑल्सो आई एम राइटिंग ताकि सबको समझ आए। तो ये हो गया एम स्क्वायर, राइट साइड लेके जाना, तो डेल्टा भी का होल स्क्वायर हो गया एज, और इधर हो गया एज बाई 4, देन एम स्क्वायर एंड देन हियर पाई। अब क्या करोगे, इसको डेल्टा भी कर लेना, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 4n m का निकाल सकते हो, m स्क्वायर का m, 4 का 2, ट्वाइस m निकल जाएगा, बट बाकी जो है h बाई 5 बच जाएगा। सो ये हो गया हमारा, और ये ना डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट याद करके रखते हो, तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। 149 का 1/2m रूट ओवर h बाई 5, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर जो है याद करके रख सकते हो, कभी न्यूमेरिकल में पुट करने के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आए, कभी हो सकता है न्यूमेरिकल है जहाँ ये इक्वेशन यूज हो जाए। चलो ना, लास्ट 150, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ए साइनम सी एंड 2, ये माइनस दिया हुआ है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2, यस, ये तो दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स नंबर है एंड हैज सेम लीनियर स्ट्रक्चर, यस सेम लीनियर स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, ऐसे ही C डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब बोलोगे मैम N तो 2 बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, इसीलिए तो उस पर माइनस है, इसलिए तो उस पर माइनस है, इसलिए CN2 2 माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पे CO2 में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल, एंड ये 2 माइनस, ठीक है। बट लीनियर स्ट्रक्चर है दोनों का, एंड दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दैट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड, Mg2C3 reacts with water to form propyl, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ये भी सही है, क्योंकि ये CaCl2 ऐसा होता है, CaC2 जो है Ca पे 2 प्लस चार्ज होता है एंड C2 में 2 माइनस चार्ज होता है। 2 प्लस 2 माइनस को हम 1:1 भी बोल सकते हैं, 2:2 को हम 1:1 बोल सकते हैं, एंड 1:1 मतलब AB स्ट्रक्चर है ना, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, हाँ ये सही है, A प्लस B माइनस जैसा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, ध्यान देना, ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही सही है। ओके, चलो नेक्स्ट। The quantum number m of a free gaseous atom is associated with effective volume of orbital, no, shape of orbital, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सही है। शेप ऑफ ऑर्बिटल तो एल ही बता देगा, एम के लिए जरूरत नहीं है। स्पेशल ओरिएंटेशन माने 3D स्पेस का ओरिएंटेशन, स्पेशियल माने 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस मच, वेलोसिटी इज दिस मच, व्हिच इज क्लोजेस्ट, ये हम नहीं कराएंगे, ये ऐसा करा दिया है मैंने, ठीक है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ने किया था। टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, ये मैं करा देगा। टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये वाला मैं नहीं करा रही हूँ 107, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं ना दूसरा पब्लिकेशन का बुक से। द टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम टेकन का फॉर्मूला मैंने थोड़ा पहले बताया था, डिस्टेंस दैट इज 2 पाई r बाय वेलोसिटी, ठीक है, टाइम टेकन। अब 2 पाई r बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, चलो। एजम्पशन के लिए mvr इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, nh बाय 2 पाई। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, velocity equals to nh by 2 pi mr, ये वेलोसिटी हुआ। अब यहाँ पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम करेंगे 2 pi r by velocity nh by 2 pi mr, मतलब ऊपर चला जाएगा 2 pi mr, 2 pi हो गया 4 pi, एंड r स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, और एक m रह गया, एंड देखो nh हो गया, देखो तो कौन सा 4 pi, और पाई भी तो 2 है, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर, ऊपर होगा आर स्क्वायर एम एन एच, डन। ए लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू
complete this one. A certain metal was irradiated with light of frequency. क्योंकि मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट इन दोनों बुक में देखा नहीं, तो मैंने एक दूसरा बुक यूज किया है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार देख लो. सर्टेन मेटल वाज, ये जो 2-3 क्वेश्चन मैं लास्ट में दे रही थी नीट में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, अभी वाला, इससे पहले वाला सारे आए हुए क्वेश्चन है. ये जो मैं लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस से, फिर भी मैं उठा के यहाँ डाल रही हूँ, क्या भरोसा दे दे, ठीक है, और नहीं भी दे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, इस लेवल का क्वेश्चन अभी आ भी सकता है. सो सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विद फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी दैट डिड फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड. मतलब इसका मतलब यही है कि बोला कि एक मेटल सरफेस है m, उसमें मैं अगर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी डालूं कितना 3.2 10^16 हर्ट्ज, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की Kmax होगी, होगी कि नहीं, Kmax होगी. ओके, दैट इज इक्वल्स टू, बोला है ट्वाइस ऑफ दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट का Kmax. अब दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट में बोला कि देखो मेटल चेंज मत करो, सेम लो, लेकिन लाइट इरेडिएट जो हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वो 3.2 जो है था ना, 3.2 10^16 उसका कम कर दो, अब कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दे दो इतना. अब कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड का भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और ये वाली की काइनेटिक एनर्जी Kmax डेस लिखा है मैंने, ठीक है. ये वाली सेकंड एक्सपेरिमेंट की, चलो Kmax 2 लिख देते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड Kmax 1 लिख देते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सो रिलेशन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द सेकंड एक्सपेरिमेंट की काइनेटिक एनर्जी. अलोंग विद दैट वन मोर हिंट इज गिवन. क्या निकालना है पहले देख लेते हैं. कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या निकालना है न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है. सॉल्यूशन इज गिवन, उसको मत देखो अभी. फिर क्या करना है तुम लोग, Kmax, ये Kmax फॉर वन इक्वेशन एंड Kmax फॉर सेकंड इक्वेशन अगर तुम करोगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो उस 2 को यूज कर लो. एंड Kmax फर्स्ट इक्वेशन का क्या लिखोगे, Kmax फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में Kmax का फॉर्मूला क्या था, h nu minus h nu नॉट, ये था ना. तो h nu minus h nu नॉट कर लो, लेकिन ये न्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फिर दूसरे में h nu कौन सा एक्सपेरिमेंट 2 minus h nu नॉट. देखो h को लिख के ना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, सब कैंसिल कर दो, है ना, ऊपर नीचे कॉमन. 2 इक्वल्स टू फाइनली क्या आया, न्यू 1 minus न्यू नॉट, नीचे न्यू 2 minus न्यू नॉट, हो जाएगा. अब ये न्यू 1 कितना दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिस वन, न्यू 2 कितना दिया हुआ है, ये 2 इनटू दिस वन. पूरा सॉल्व कर लोगे ना आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8 into 10^15 आवर्स. चलो आगे. इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द कलेक्टर प्लेट इज 2 वॉट, ठीक है, कलेक्टर प्लेट इज 2 वॉट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तुम लोग सीख लेते हो. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करके जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, उसको हम बना सकते हैं. जैसे कि एक कैथोड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनाओगे, ये कैथोड है, ठीक है, नेगेटिव काम है, उसको वैसे वायर से करो, फिर बाहर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव के साथ. ये जो कैथोड है ना, कैथोड है, उसको हम इमीटर प्लेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इमीटर प्लेट. क्या है ये इमीटर प्लेट, और ये क्या है, एनोड. दिस इज योर एनोड, पॉजिटिव प्लेट है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज योर कलेक्टर प्लेट, दिस इज योर कलेक्टर. अब ये लाइट सेंसिटिव मेटल से कैथोड बनाना पड़ेगा तुम्हें, और फिर वोल्टेज सप्लाई करना है. अब यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, यहाँ पे होगा लाइट इंसिडेंट. जैसे ही लाइट आके गिरेगी कुछ फ्रीक्वेंसी की, कुछ वेलोसिटी की, मतलब जो भी है, कुछ वेवलेंथ की, जो भी दिया हुआ होगा ऑप्शन में, यहाँ हम देखेंगे, तो ये लाइट जैसे ही आके गिरेगा, ये मेटल में जो एटम्स है वो एक्साइट हो जाएगी. इसकी एटम एक्साइट मतलब एक्चुअली एटम की इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू होगा. इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन कौन देगा, एनोड खींच रहा है ना, एनोड क्या करेगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होगा, इधर आ जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन मिल रही है. ऐसे देखो तो, ऐसे मैं जो ऐसे क्लॉकवाइज दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो करती है ना, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल मैंने बना लिया, एक जस्ट रफ मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे बना लिया. अब ध्यान देना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल मैंने बना लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ये जो कलेक्टर प्लेट है ना, ये वाला कलेक्टर प्लेट, उसमें 2 वोल्ट यानी वोल्टेज सप्लाई तुम ऑलरेडी कर चुके हो, 2 वोल्ट, ओके, 2 वोल्ट. अब तुम ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इजेक्ट होकर निकल के एनोड की तरफ आता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है थोड़ा सा, ठीक है. सो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा, मान लो तुमने 100 जूल की एनर्जी दी, बट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 80 जूल चाहिए था निकलने के लिए, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है 20 जूल, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे, वहां से पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन के हैं. मान लो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गए, बट के ई उसका 0 है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका 0.
तो ये सिर्फ वोल्टेज जो 2 वोल्ट है ना उसके लिए एनर्जी दिखाएगा। अब 2 वोल्ट के साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज E इंटू कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी तब मिनिमम मुझे मिलेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड ना आए तब भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज वी आर सप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 2। ठीक है ना। ये के मैक्स एंड के मिनिमम का क्वेश्चन था। तो के मिनिमम, फाइंड मिनिमम, दैट इज योर के मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Whereas मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑलरेडी है ही, जो वोल्टेज तुमने सप्लाई किया उसकी वजह से एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो प्लस करना पड़ेगा। फॉर दैट पार्ट यू आर गोइंग टू डू h nu minus h nu naught। h nu कैसे निकालोगे, ac by lambda minus h nu naught। व्हाट इज h nu naught गिवन, h nu naught माने वर्क फंक्शन, कितना दिया हुआ है वर्क फंक्शन 4.5। ये h nu की जगह h nu naught जो है उसमें शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाया था 1240 करके नैनोमीटर वाला वेवलेंथ से डिवाइड करो, नैनोमीटर वेवलेंथ 200, देखो कितना आसान हो गया। अब 0 चला गया, 124 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज योर 6.2 minus 4.5, that will be your 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के है, यानी कि मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन का अपना काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1.7। अगर उसको हम प्लस कर दे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को प्लस कर दे, देन टोटल विल बी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच विल बी योर के मैक्स। यानी कि मैक्स टू मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितना दिखा सकता है ये इलेक्ट्रिक जो सेल है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, एंड मिनिमम कितना देख सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ द 2 वोल्टेज व्हिच वी हैव सप्लाइड। ठीक है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना हो, जीरो हो, तो 2 वोल्टेज की वजह से होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ वी ऐड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन then it will be 3.7 electron volt, which is your maximum kinetic energy. So I think this is the last question for today। तो बट देख लेते हैं और एक है क्या, अच्छा और एक है लास्ट। In an atom, electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.005% certainty with which a position of electron can be located। यानी कि तुम्हें निकालना है डेल्टा x, फॉर्मूला वही है डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाय 4 पाई। ठीक है, हम इक्वल टू करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तुम्हें डेल्टा x निकालना है। ठीक है, अब डेल्टा x एंड डेल्टा p के जगह क्या लिखते हैं, m डेल्टा v लिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया है एक्चुअली, फिर से आगे एक क्वेश्चन, तो वो चीज डेल्टा भी कैसे निकालते हैं मैं बता देती हूँ। क्या लिखा हुआ है 0.005% है ना, और वेलोसिटी 600, तो तुम क्या करोगे, डेल्टा भी कितना होगा 0.005% मतलब डिवाइडेड बाय 100, 0.005 बाय 100 इनटू कितना है 600 मीटर पर सेकंड। ये पूरा करोगे ना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा डेल्टा भी। तो डेल्टा भी एम के साथ पुट करो h by 4 पाई। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो ये तुम लोग कर सकते हो। सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, सी दैट्स ओके। So with this I have completed your atomic structure previous year question discussion। So next मिलेंगे हम chemical bonding के साथ, तो आज ही मैं उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। chemical bonding and more concept I will be following with it। ठीक है, so अभी इसको खत्म कर देते हैं।